નમસ્તે. તો પહેલા સેશનમાં આપણે જે સંવાદ કર્યો એનો નિષ્કર્ષ જરા સમજી લઈએ. ગુજરાતીમાં આપણે પૈસા ઉપરની કહેવતો કઈ કઈ યાદ આવે કોઈને? પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો દાસ. પછી નાણાં વગરનો નાથ્યો ને નાણે નાથાલાલ. આનો શું મતલબ? નાણાં વગરનો નાથ્યો ને નાણે નાથાલાલનો શું મતલબ? સન્માન અને બરાબર ને. એટલે પૈસા સાથે શું જોડાયેલું છે? પૈસા બડી ખુશામત, પૈસા બડા સલામત, પૈસા બડી હજામત, આવી એક કહેવત છે. પછી બહુ પૈસાના ચાળા છે. પછી પૈસો પૈસાને ખેંચે. પછી પૈસો બોલે છે. આપણે શું કહે? પૈસા બોલતા હૈ. ના બીવી ના બચ્ચા, ના બાપ બડા ના ભૈયા, ધ હોલ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ભૈયા. એવું આપણે સામાજિક રીતે ક્યાંક સ્વીકારેલું છે. અને એટલા માટે આપણે પૈસાને સન્માનની સાથે જોડી દીધો છે. પૈસો હોય એનું જ સન્માન. પૈસાદારની છાસ પોટલે વેચાય. છાસ પોટલે વેચાય. એમ છાસ પૈસાદારની છે, પણ છાસ પોટલે વેચાય એટલે એનું આમ અમૂલ્ય હોય. એમ મોંઘા ભાવે વેચાય. પૈસાદારની છાસ પોટલે વેચાય, મોંઘા ભાવે વેચાય. બાકી છે છાસ જ, પણ કારણ કે પૈસાદારની છે એટલે હા, પૈસો ટકો લે અને મને શેઠ પટેલ કે, આવી એક કહેવત છે. મતલબ મારી પાસે પૈસા લો ને મને માન આપો. આપણે સમાજમાં જ્યારે ડોનેશન વાળો જે આસ્પેક્ટ છે એમાં શું છે? પૈસો આપે તો એને પહેલી રોમાં બેસવા મળે, અતિથિ વિશેષ, વીઆઈપી, સ્ટેજ ઉપર બેસવા મળે. એટલે એવી વાત છે કે પૈસો હું આપું અને મને સન્માન આપો. પૈસાને આપણે જોડી દીધું ક્યાં? સન્માન સાથે. એવું એક નિષ્કર્ષ આખી વાતમાં કે આપણે અત્યારે વ્યવહારમાં જે પણ કંઈ કરીએ છીએ એમાં પછી ભાઈએ સરસ ધ્યાન દોર્યું. આપણા જે સીએ ભાઈ, નામ શું છે એમનું? સંજયભાઈ. એમણે ધ્યાન દોર્યું કે ભાઈ પૈસો રિલેટિવ ટર્મ છે, કે જ્યારે યુવાનીમાં હોય ત્યારે કોઈ જુદી રીતે દેખાય, અને એકવાર એને પામી લીધો પછી જુદી રીતે દેખાય. એને પામી લીધા પછી એનું પ્લેસમેન્ટ કંઈક જુદી રીતે થાય, એવું એમનું મંતવ્ય એમણે રજૂ કર્યું. અને એ સિવાય અહીંયા એક બીજી વાત રજૂ થઈ કે ભાઈ પૈસાથી શું ખરીદી શકાય, શું ન ખરીદી શકાય. એટલે આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો પૈસાથી શું ખરીદી શકાય, શું ન ખરીદી શકાય વાળી વાતમાં આપણે જે પણ પૈસાથી નથી ખરીદી શકાય એવી વસ્તુ જે છે એ મોટા ભાગની જે છે એ આપણા ખાલી પાના સ્તરે આવે છે, કે આ આપણામાં કંઈક મિસિંગ ભાગ છે. આ જે ભાગ છે આ આપણી પાસે શબ્દોમાં છે, આપણી પાસે હજી એ ચાહતમાં છે, ઈચ્છામાં છે, પરંતુ આપણી પાસે હોય એવું દેખાતું નથી. એમ કે જે આપણી પાસે છે, એમ હું આમ હકથી કહી શકું કે હા હું સંતુષ્ટ છું, કે હું પ્રેમથી જીવી શકું છું. આપણે આમ પ્રેમ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ પણ એને એક્ઝેક્ટલી પ્લેસ કરો તો આપણને ખબર નથી પડતી કે એનો મતલબ શું કાઢશું. મારા માટે જે પ્રેમ એ જ તમારા માટે પ્રેમ, મારા માટે જે સંતોષ એ જ તમારા માટે સંતોષ, મારા માટે જે કરુણા એ જ તમારા માટે કરુણા, મારા માટે જ્ઞાન એ જ તમારા માટે જ્ઞાન, મારા માટે સન્માન એ જ તમારા માટે સન્માન. કે સન્માન ખરેખર કોઈ વસ્તુ છે જેને આપણે બંને જોઈ શકીએ અને સરખી રીતે એને અનુભવી શકીએ. જ્યારે એને સરખી રીતે અનુભવી શકીએ ત્યારે સમાધાન. અત્યારે આપણે બધા આમાં ખૂબ બધા આગળ વધી ગયા છે. આપણા બધાના ઘરમાં સાધનો વિપુલતામાં છે કે નથી? મોટા ભાગના લોકો અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે, કે જેમાં માન લો કે આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ એટલી સારી ના હોય દુનિયાની દ્રષ્ટિએ, તે છતાં એની પાસે સાધન તો હોય. સાધન હોય એટલે આપણે એને કેવી રીતે જોઈએ, કોઈ ફોન તો છે એની પાસે, એટલે એની પાસે દૂરસંચાર માટેનું, કમ્યુનિકેશન માટેનું સાધન તો છે. એના સુધી માહિતી બધી પહોંચે જ છે. એક છેવાડાનો માણસ છે એની પાસે કોઈ કાં તો રેડિયોના માધ્યમથી, કદાચ કોઈ એક એવી જગ્યાએ રહે છે કે જ્યાં બહુ બધું નથી પહોંચતું, તો ત્યાં પણ સૌથી ઇફેક્ટિવ માધ્યમ રેડિયો છે, કે જેને તમે અંતરિયાળ વિસ્તાર આપણે કહીએ. આપણે શું કહીએ? અંતરિયાળ વિસ્તારો. અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં કોમ્યુનિકેશન તો થાય છે, બરાબર? એટલે એની પાસે સાધન તો છે. એટલે તમે હું ગીરના નેસમાં ગયો હતો, મને એવું એક ચાન્સ મળ્યો તો ગીરના નેસમાં જવાનો. તો
તો નેસ વિશેની વાતો તો કદાચ તમારા સુધી પહોંચી કે ના પહોંચી, પણ એ બિલકુલ એકદમ જુદા પ્રકારનું જીવન છે, પ્રકૃતિની સાથેનું જીવન. એટલે હું એમને પૂછ્યું, પેલા માસી હતા એમને પૂછ્યું મેં કે માસી તમે સિંહ તમે આમ રોજ જોવા મળે તમને? તો કે હા, અહીંથી જ જાય. એટલે મારા માટે આખું આમ મેં કીધું આ શું, આમ આપણે ત્યાંથી બિલાડી જતી હોય ને એવી રીતે વાત કરે કે અહીંથી જ જાય છે. એટલે આખી જુદું જીવન છે એ લોકોને, એમની આખી માનસિકતા જુદી છે. પ્રકૃતિની સાથે એમનો તાલમેલ જરા જુદા પ્રકારનો છે. આપણે જે શહેરોમાં જીવીએ છીએ એના કરતાં જુદું છે. પણ ત્યાં સાધનમાં જ્યારે જોઈએ તો મેં જોયું કે ગીરમાં જ્યારે 2 વર્ષ પહેલાં 3 વર્ષ પહેલાં જે ખૂબ મોટું વાવાઝોડું આપણે ત્યાં આવ્યું હતું દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં, અને એનાથી ખૂબ બધી નુકસાની થઈ. પણ હવે એ જે જગ્યા છે નેસની અંદર વીજળી નથી. જંગલની અંદર નેસમાં જે લોકો રહેતા હોય એ લોકો વીજળીનો ઉપયોગ નથી કરતા, પણ એ લોકો છેલ્લા થોડા વર્ષોથી સોલાર બેટરીથી ઓપરેટેડ લાઇટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. વીજળી નથી પણ સોલારથી ચાલતી લાઇટ છે, અને લાઇટ એક જ હોય. રૂમ કેટલો, આટલો નાનો રૂમ હોય, એમ આટલો નાનો રૂમ હોય એમનો. એટલે મેં પૂછ્યું વાવાઝોડું આવ્યું ત્યારે, તો કે આ એકમાં અમે 18 જણા હતા, આટલામાં 18 જણા રહ્યા હતા એમ. તો ત્યાં એમનું રસોડું છે, સાધનો બિલકુલ બેસિક. મેં કહ્યું શાકભાજી ક્યાંથી આવે? તો કે અમે શહેરમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે ત્યાંથી લેતા આવીએ, અમારે અઠવાડિયું ચાલે એમ. તો એક ગણીને 2 કે એવા ઓરડા હોય અને એક રસોડું હોય, તો એક જે બીજો ઓરડો છે એની અંદર આખી બટાકાની ગુણો ભરેલી હોય એમની. એટલે એમનું શાક એમ, અને જમવાનું બધા ભેગા જમે. એટલે જે ગાય ચરાવવા માટે જાય જે લોકો, એ લોકો બધા તો ગાય ચરાવવા માટે જાય અને એ બધા પોતપોતાના ઘેરથી એક બટાકો લેતા આવ્યા હોય કે થોડા, અને પછી ભેગા થઈને એનું શાક બનાવે. જ્યાં પણ ચરતા હોય ત્યાં 4 પેલી ઈંટો ગોઠવી દે અને ચૂલો કરીને કરે. હવે સાધન, આપણે એમ કે સાધન છે એમની પાસે ગાડી છે, એમની પાસે ત્યાં દિવાલ ચણી શકાય એવું સાધન છે, ઘર ચણી શકે, પણ એ ઘરને પાકા પાયે ના ચણી શકો, કારણ કે નિયમ છે, કાયદો એવું કહે છે કે એ લોકો પાકા ઘર ત્યાં ન બનાવી શકે, એમને પાકા ઘરમાં રહેવાની અનુમતિ નથી. તો છેક છેવાડાનું જીવન જીવતો માણસ, એની પાસે મોબાઈલ ફોન છે જ. ટાવર ના આવે અલગ વાત થઈ, પછી ટાવર માટે એક ટેકરી શોધેલી છે એમણે, કે એ ટેકરી પર જાય ને ત્યાં ટેકરી પર જઈને વાત કરે કે ત્યાં ટાવર પકડાય, ત્યાં. પણ એને ખબર છે કે મોબાઈલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે. એવું નથી કે એની પાસે સાધન નથી. એ જે દૂધ ભેગું કરે છે, દૂધ બધા ભેગા કરીને કોઈ એક જગ્યાએ આપવા માટે જાય, તો એ દૂધ કલેક્શનનું આખું એમની જે મિકેનિઝમ છે, સાધનો છે. તો એક છેવાડાનો માણસ ગણો અને એક આપણે અત્યારે શહેરમાં કમ્પ્લીટ ભૌતિકવાદમાં જીવતો માણસ આપણે ગણીએ. આપણા બધા પાસે સાધન તો છે. કદાચ હા, પરિપ્રેક્ષમાં મૂકો, એક કમ્પેરિઝનમાં આપણે આપણા કોન્ટેક્સ્ટમાં જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપણને એવું લાગે કે યાર એમની પાસે ઓછા સાધનો હોય તો એ કેવા સુખથી જીવે છે, એવું આપણે ધારી લઈએ. ભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી હતી કે અમીરી ને ગરીબીના આધારે કંઈ સુખનું ત્રાજવું કેવી રીતે તોડશું. ગરીબ માણસ પાસે સાધન નથી તો એ સુખી નથી, કે અમીર માણસ પાસે સાધન છે તો એ સુખી છે. આવી બધી વાતો થઈ, બરાબર. આવા બધા પ્રશ્નો આપણે ચર્ચ્યા મૂળ. એટલે આપણે પ્લેસ કરવાનો ટ્રાય કર્યો કે ભાઈ આ સ્કિલ, આરામ, ફોન, મનોરંજન, ગાડી, કપડાં, મકાન, આહાર, ડેટા, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જેને આપણે અત્યારે ભૌતિકવાદ કહીએ છીએ, એને આખું આપણે જીવી જ રહ્યા છીએ. આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણે એ જ જીવી રહ્યા છીએ આખું. પણ એમાંય ક્યાંય ખાલી પોતો બધાને વર્તાય જ છે. એમાંય ક્યાંય આપણી પાસે સમાધાન, વિચારમાં સમાધાન હોય, બૌદ્ધિક સમાધાન હોય એવું તો દેખાતું નથી. એટલે વસ્તુથી સમાધાન કે વસ્તુથી સન્માન મળતું એવું દેખાતું નથી. આપણે ધારી લીધું છે ખરું કે વસ્તુમાં સન્માન છે, પણ ખરેખર વસ્તુમાં સન્માન છે કે નહીં એ પ્રશ્ન પૂછવા લાયક પ્રશ્ન છે. અને ખરેખર કે જે આ ભાગ છે આખો, કે જેમાં બૌદ્ધિક સમાધાન થાય કેવી રીતે બુદ્ધિના સ્તરે, કેવી રીતે મારો જે અંદરનો ખાલીપો છે એમાં હું સમાધાનિત થઈ શકું. આ સમાધાન નામનો શબ્દ આપણી સામે કદાચ ગુજરાતીઓ સામે આમ આ રીતે પહેલી વાર આવ્યો છે. મધ્યસ્થ દર્શનમાં જ્યારે સમાધાનનો, આપણે મોટાભાગના ગુજરાતીઓ સમાધાનને શું સમજે? લવાદ કહીએ આપણે, હે ને, કોમ્પ્રોમાઇઝને આપણે સમાધાન કહીએ છીએ, રાઈટ. ગુજરાતીઓ માટે આ સમાધાન શબ્દને પકડવા માટે થોડી પરિચય શિબિરમાં સ્ટ્રગલ થાય છે આપણને. કેમ? કારણ કે આપણે કલ્ચરલી આ શબ્દને કયા સંદર્ભમાં લીધો છે? કોમ્પ્રોમાઇઝ. લાઈફ ઇઝ અ કોમ્પ્રોમાઇઝ એવું આપણે કહીએ. ઘરમાં લગ્ન થવાના હોય તો દીકરીને એવું શું કહે, શિખામણ શું આપે? બેટા, એટલે વર વધુ બંનેને એક પ્રકારની શિખામણ મળતી હોય કે ભાઈ કોમ્પ્રોમાઇઝથી જ ગાડું આગળ ચાલશે, એવું આપણે કહીએ છીએ. હે ને, ચલાવી લેવાનું. પડ્યું પાન નિભાવવું પડે, આવું સાંભળ્યું છે કે નહીં? પડ્યું પાન
એમાં શું છે? આપણે ક્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે? કોમ્પ્રોમાઇઝ ખુશીથી થાય કે દુઃખથી થાય? કોમ્પ્રોમાઇઝ આમ સામે ચાલીને થાય કે પછી આમ પરાણે થાય? પરાણે થાય. તો અહીંયા સમાધાનનો અર્થ આ પરાણેવાળા અર્થમાં નથી. અહીંયા સમાધાનનો અર્થ છે રિઝોલ્યુશન, રિઝોલ્વ થવું. આપણે બધા ક્યાંક ગંઠાયેલા છે, એ ગાંઠ ઉકલી જવી. આપણા બધાની વચ્ચે કોઈ અપારદર્શકતા છે, અપારદર્શકતા નીકળી જવી ને ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ જવું, ત્યાં રિઝોલ્યુશન છે. વિચારોમાં રિઝોલ્યુશનની અહીંયા વાત થઈ રહી છે. મૂળ વાત આ છે કે અહીંયા વિચારોમાં રિઝોલ્યુશનની વાત છે. બીજી એક વાત ભૈયાએ કરી એ હતી કે માણસ જોઈને સુખી થાય છે. જોવામાં સુખ દુઃખ છે. તો એટલે કોઈ છાપામાં આપણે કોઈ પણ સમાચાર વાંચીએ જે આપણને અમાનવીયતાના લાગે તો આપણને શું થાય? એમાં એના માટે છાપામાં છે ને સરસ વિશેષણ હોય છે, એ તરત પકડી લેવાય. શું કે આપણે અરેરાટી ભર્યું કૃત્ય અથવા તો કમકમાટી કહીએ ને આપણે, કમકમાટી નિપજી. આ કમકમાટી ક્યાં થાય છે એક્ઝેક્ટલી? અરેરાટી ક્યાં થાય છે? ખાલી જોઈને, વાંચીને, સાંભળીને. આપણે તો એનું જીવન જીવ્યા ને. કોઈ બાળકીની સાથે કોઈ ઘટના થઈ ગઈ, દુર્ઘટના, જેમ ભૈયાએ અહીંયા એક એક્સિડન્ટનું ઉદાહરણ આપ્યું, એવી જ રીતે કોઈના ઘરમાં ચોરી થઈ ગઈ, કોઈની કરપીણ હત્યા થઈ ગઈ, આ બધા જે શબ્દો છે એ શબ્દો સાંભળીને આપણી અંદર શું થાય છે? ખાલી સાંભળતા વેત જ. હા, એટલે આપણી અંદર એક પ્રકારની સહાનુભૂતિ જન્મે છે, હે ને? તો એ જે સહાનુભૂતિ છે કે આપણે એને જે થાય છે એ આપણે ખાલી જોઈને, માત્ર જોવા માત્રથી માણસને સુખ કે દુઃખ થાય છે. હવે શું જોવાથી સુખ થાય છે અને શું જોવાથી દુઃખ થાય છે? વ્યવસ્થા જોવાથી સુખ, અને અવ્યવસ્થા, જેટલી વાર અવ્યવસ્થા પર ધ્યાન પડે એટલી વાર દુઃખ. તો આપણે કહીએ, કોઈનું નામ ઘણા લોકો કહેતા કે એ બહુ વાંક દેખો છે. શું કહીએ આપણે? વાંક દેખાવ હોવું એટલે શું? ક્રિટિક. વાંક દેખાવો એટલે શું? દરેકમાં એને શું દેખાય? કોઈ બી આવીને એમ કે યાર સરકાર બહુ, અરે સરકાર, તમે કઈ બી એને કહો ને કે ગુજરાતમાં હાઈવે બહુ સરસ થઈ ગયા, અરે અમને બધી ખબર છે. હવે પોલ અમદાવાદમાં આવે કેવા ભૂવા પડે છે, બતાવું તને. દર વર્ષે એકની એક જગ્યાએ ભૂવા પડે, પણ આ લોકો કંઈ કરતા નથી. આ બધા મલાઈ ખા કરે, કટકીઓ કરે. બરાબર? કોઈ બી તમે કિસ્સો લઈ લો કે આના લગ્ન બહુ સરસ હતા, કે હા હવે બધું ખબર છે હવે એમનું ક્યાંથી આવે છે. પછી બ્લેકના હોય તો વાપરે ક્યાં? તો કે બધા કે એટલે કરવું જ પડે ને. પછી કોઈ પણ તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, એને કોઈ પેલા બે જણા વાત કરતા હોય કે આ હમણાં કે સરસ યુરોપ ફરી આયા, તો બળતરા કોને હોય? જે વાંક દેખો છે એને. ખોડ ખાપણ, સતત ખોડ ખાપણનું જ આખી વાત છે. સોશિયલ મીડિયા પર તમે જુઓ, એકબીજાને બધા કોમેન્ટ શું કરે. કોઈ માન લો કે તમને વોટ્સએપમાં સારો સુવિચાર બી મોકલ્યો ને, ગુડ મોર્નિંગનો, તો અંદર શું ચાલે ખબર? બે આના પોતાની લાઈફમાં તો ઠેકાણા છે, અને મને કે આવું બધું કયા કરે? તો કે આ જે મને મોકલ્યું હતું તારી જાતને વંચાય ભાઈ. પોતે વાંચીને મોકલતા હોય તો એમનું જિંદગી સુધરી ગઈ હોત. કે ના કે? આ શું છે મૂળ વાત? આપણી વક્ર દ્રષ્ટિ. વક્ર દ્રષ્ટિ એટલે શું? વાંક દેખાવો, વક્ર દ્રષ્ટિ. હા, આપણી દૃષ્ટિમાં છે ને જે ખરેખર જેવું હોવું જોઈએ એવું દેખાય નહીં, એટલે આપણે અનરિઝોલ્વ છીએ. આપણે વિચારોમાં અનરિઝોલ્વ છીએ. વિચારોમાં રિઝોલ્વ થાય તો હાર્મની થાય, તો સંવાદિતા હોય, તો સામરસ્યતા હોય, નહીં તો ના હોય. અને આપણી સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે? આપણને વ્યવસ્થા દેખાતી. તો વ્યવસ્થા દેખાય કેવી રીતે? અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા છે કે અવ્યવસ્થા? પહેલા તો એ સમજવું પડે. અહીંયા ભૈયાએ કીધું કે દુઃખ એટલે અવ્યવસ્થા, અને સુખ એટલે વ્યવસ્થા, અને સમાધાન એટલે નિરંતર સુખ. તો વ્યવસ્થાની સતત દૃષ્ટિ હોવી, જે વક્ર દૃષ્ટિ છે એની જગ્યાએ વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિ થાય. દૃષ્ટિની અંદર વ્યવસ્થા દેખાય, જે સમજણની દૃષ્ટિ છે એમાં. તો એ કેવી રીતે આવી શકે એના વિશેની ચર્ચા હવે આપણે આગળ કરીશું. હવે અત્યાર સુધી જે પણ કંઈ ચર્ચ્યું એની અંદર કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કોઈ પણ પ્રકારનું, કંઈ પણ, તો એકવાર જરા એની ચર્ચા. સમાધાન ક્લિયર થયું ને? સમાધાન, કોમ્પ્રોમાઇઝ. આપણે ગુજરાતીઓ જે રીતે સમાધાનને સમજીએ છીએ એ રીતે અહીંયા શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો નથી. અહીંયા સમાધાન કયા સંદર્ભમાં મૂકવામાં આવ્યો છે? રિઝોલ્યુશન. રિઝોલ્યુશનનો મતલબ આપણે બંને વિચારમાં એક થઈએ ત્યારે રિઝોલ્યુશન આવ્યું.
અથવા તો વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં મારો વિચાર થઈ જાય, જ્યારે વ્યવસ્થાગત વિચાર મને વ્યવસ્થા દેખાય ત્યારે હું રિઝોલ્વ થયો, ત્યાં સુધી મારી અંદર શું છે? કોન્ફ્લિક્ટ, સમસ્યા. આ મૂળ વાત છે. એટલે સમાધાનનો ઉપયોગ જે છે જુદા પરિપ્રેક્ષમાં અહીંયા થયો છે. હા, આપણા અંદર જે ચાલતા વિચારો ખરા એ આપણે પૈસાના માધ્યમથી સુધારી ના શકીએ, એવું કંઈક એ બી એક આવી શકે ને વિચાર? શું આપણી અંદર જે બી વિચાર ચાલે છે, આપણી જોડે ગમે તેટલા પૈસા હશે તો એ સુધરશે કે નહીં સુધરે, એ આપણે પૈસાથી નહીં ખરીદી શકીએ. તો એના માટે આપણે એમ વાત થઈ કે કોઈ પણ એક ધનિક વ્યક્તિનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. બેસી જાઓ ને. માન લો કે હું બહુ પૈસાદાર છું, ઉધારી લઈએ અત્યારે, બરાબર, અને સમાજમાં મારી ખૂબ માન સન્માન પ્રતિષ્ઠા પણ છે. હું 5 ક્લબની અંદર મેમ્બર છું, ફલાણી જગ્યાએ હું સેક્રેટરી ચેરમેન છું, જે બધા ધનિકોના સમુદાય છે એમાં મારું ખૂબ માનપાન છે, બરાબર. હું ઘરે જઉં છું, થાકેલો છું અને મને ચા પીવાનું મન છે, એટલે મેં પત્નીને કહ્યું કે મને ચા બનાવી દે. હું બેઠો ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર, પત્ની આવીને એને ચાનો કપ આમ મૂક્યો, લો ગળચો તમારી ચા. લો ગળચો. હવે કહો, ચા ઉતરશે જ નહીં ને? ચા ઉતરશે? એનો ઘૂંટડો કેવો લાગશે? ઝેર જેવો, કડવો. ચા પીવાનું મન હતું, થઈ શું ગયું? કડવો વખ જેવો ઘૂંટડો. કેમ? હવે એ જ ડાઇનિંગ ટેબલ છે, મારી પાસે સોનાની થાળી છે, એની અંદર બધા સરસ મિષ્ટાન, બધું 36 પકવાન પીરસવામાં આવ્યા છે, બરાબર. મારે જે જોઈતું હતું બધું જ છે એની અંદર. અને મને મન હતું કે અમેરિકાથી મારો દીકરો આવ્યો છે, એની સાથે બેસું, એની સાથે જમું, એની સાથે કંઈ વાત કરું. એટલે ડાઇનિંગ ટેબલ પર અમે વાત શરૂ કરીએ છીએ અને હું એને પૂછું છું કે શું ભઈલા, શું બચત કેટલી? ત્યાં અમેરિકામાં રહે છે, તું તારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બધું જુએ છે ને? ખાલી આટલું જ પૂછ્યું છે મેં. અને સામેથી મને એમ કે તમારે છે ને મારી વાતમાં માથું નહીં મારવાનું, તમે મગજ અમને અમારી રીતે જીવવા દો, દરેક વસ્તુમાં ડબડબ નહીં કરવાનું. તમારું બહુ ચલાવ્યો અમે, હવે નહીં, હવે મને મારી રીતે ધંધો કરવા દો. તમારી રીતે ધંધો કરતા નહીં આવડતો, અમારો જમાનો બદલાઈ ગયો છે ભાઈ, સમજતા નથી, દર વખતે ડબડબ કર્યા કરો છો. હવે કહો, આ સોનાની થાળી, આ મારું પકવાન, મારે જે વેડમી હતી, શું થશે વેડમીનું? ભૂખ મરી ગઈ, ઉતરશે જ નહીં, બરાબર. તો આ જે ભાગ છે, આ ભાગ એને આની સાથે બહુ લેવા દેવા નથી. પણ જેમ ભાઈએ કીધું એમ કે એને એવી રીતે ઉતારી બી નહીં પાડે કે ભાઈ આ છે તો આ થશે, આ છે તો આ થશે, એવી વાત છે નહીં. આ બંને આયામ જે છે, સમાધાન અને સમૃદ્ધિ, એના સુધી ખરેખર એ શું છે, કેવી રીતે પહોંચી શકાય? મારો જે સંબંધ છે એ સંબંધ છે શું? ખરેખર હું સંબંધમાં જીવી શકું છું? એ સંબંધની અંદર કોઈ એક મૂલ્ય છે, એ મૂલ્યને હું પામી શકું છું? એ મૂલ્યનું વહન કરી શકું છું? થઈ શકે કે ના થઈ શકે, એ વિશેની ચર્ચા હજી આપણે આવનારા સમયમાં કરીશું, બરાબર ને? યસ. બીજું કોઈ બીજો પ્રશ્ન? નહીં? ભૈયાને સાંભળ્યું. शुरू नहीं? अच्छा, बढ़िया. तो 2 तरह की आवश्यकता हम लोगों ने देखा. एक आवश्यकता जिसमें सुख, निरंतर सुख चाहिए, और दूसरी तरह की आवश्यकता क्या है, जिसमें सुविधा अभी बना हुआ है. एक्चुअली सुविधा नहीं चाहिए, मानव को चाहिए साधन, लेकिन अभी ये सब क्या है, साधन नहीं है. ये हमारे लिए क्या है अभी? सुविधा. अभी ये भी अंतर नहीं पता चलता कि साधन क्या है और सुविधा क्या है. तो हम साधन को सुविधा मान बैठे हैं. क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? सुख.
तो अभी मैं आहार से शरीर को पोषण करने की बजाय आहार क्या मेरे लिए एक थोड़ा सा सुख की भी वस्तु है, इसीलिए आहार क्या हो गया, साधन की बजाय सुविधा। तो जिन चीज़ों से हम सुखी होना चाहते हैं वो अब मेरे लिए सुविधा है, मेरे लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस को, एक अनुकूलता को, एक सुखद अनुभूति को दे रहा है अंदर, तो सुख लग रहा है, इसलिए आहार मेरे लिए सुविधा हो गया। मकान भी क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब मकान से मेरे लिए सुख या सम्मान जुड़ गया है। तो जब भी भौतिक चीज़ों से या मटेरियल चीज़ों से सुख का चीज जुड़ गया, अब वो क्या बन गया, सुविधा। ऐसे ही आप देखेंगे गाड़ी का एक भाग है साधन, कहीं आना जाना है तो वो तब तक तो साधन है, लेकिन गाड़ी से जुड़ गया सम्मान, उससे जुड़ गया मेरा सुख, तो अब गाड़ी क्या हो गया, सुविधा। उससे जुड़ गया मेरा आराम, तो अब गाड़ी क्या हो गया, सुविधा। अब मुझे सुविधाजनक गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी में अब क्या चाहिए, अलग अलग सुविधा। और फिर पूरा मटेरियलिज्म क्या कर रहा है कि ये जो साधन है उसी में सुख है। तो एक है साधन, साधन मतलब मीन्स, तो मीन्स ही क्या हो गया, एंड हो गया। अभी साधन में ही क्या हो गया, सुख। तो भौतिकवाद क्या कर रहा है, उसी साधनों में लगातार कुछ चीजें बदल दे रहा है ताकि आपको सुविधाजनक लगे। जैसे घर है, घर में अंदर कोई दीवार है, उसके अंदर पेंटिंग है, उसके अंदर कुछ एसी लगा है, लाइट लगा है, लाइट यहाँ लगा है, बल्ब आ रहा है, उसके अंदर कोई प्रकाश, उसके अंदर कोई, तो अभी हर चीज़ क्या कर रहे हैं हमको अच्छा लगे। जैसे जैसे अच्छा लगना बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमको सुख दे रहा है वो, है ना। तो सुख देने का मतलब अब वो मकान क्या हो गया, मेरे लिए सुविधा बन गया। और कब हम धीरे धीरे सुविधा का क्या हो रहा है कि हमको सुख कितना चाहिए, निरंतर, तो फिर सुविधा क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा क्या चाहिए, और इसका कहीं एंड है क्या, नहीं है। तो चूंकि एंड नहीं है, इसके कारण ये जो सुविधा है, अमीर के पास क्या है, सुविधा संपन्नता, और गरीब के पास सुविधा विहीन। लेकिन दोनों के पास क्या हो गया, एक चीज आ गई, यहां भी क्या हो गया, अभाव। क्यों हो गया अभाव, क्योंकि सुविधा कितना चाहिए तय नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तय नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको सुख कितना चाहिए, और सुविधा से निरंतर सुख बन नहीं रहा है, तो सुविधा बढ़ती जाएगी, कितना बढ़ता जाए, और निरंतर सुख हो रहा ही नहीं रहा है। मान लो किसी के पास आज $1 ट्रिलियन हो गया, वो भी क्या कर रहा है, अभी भी उसकी सुख की तलाश जारी है, संबंधों में स्टेबिलिटी चाहिए, उसको भाव संपन्नता चाहिए, उसको अभी भी सम्मान चाहिए। सब लोग सम्मान देते नहीं है भाई, प्रेसिडेंट बन गया तब भी उसके विरोधी लोग तो हैं ही, सब लोग तो प्रेज नहीं कर रहे, है ना। तो ये प्रॉब्लम तो बना है, तो हमको मालूम ही नहीं कि सम्मान क्या चीज़ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा सुविधा बढ़ गया, तो दो तरह के लोग हो गए, एक हो गया अमीर और एक हो गए गरीब। दोनों, एक में सुविधा संपन्नता, एक में सुविधा विहीन, दोनों में एक चीज कॉमन है, अभाव। इसका क्या प्रमाण है, दोनों अपने चीजों को और बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी है उसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। ये बढ़ाना चाहते हैं, ये मेरे अंदर क्या फुलफिलमेंट है या कमी, तो हर आदमी कमी है तभी तो बढ़ाना चाहता है। एक और चीज आती है, उसका नाम है समृद्धि। एक और चीज है, यह है समृद्धि। तो समृद्धि क्या चीज है, अभाव का अभाव। समृद्धि क्या है, अभाव का अभाव। समृद्धि एक अलग चीज है जिसमें कोई अभाव नहीं है, उसको पॉजिटिव में बोलेंगे तो क्या है, भाव संपन्नता है, अभाव है ही नहीं।
तो दो तरह की गरीबी है, एक सुविधा या दो तरह की विपन्नता है, एक सुविधा के साथ और एक सुविधा के बगैर। और उसका क्या प्रमाण है? दोनों जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी है, इट डजंट मैटर। कोई 1 लाख पे है, कोई 1000 पे, 1000 वाले को 1 लाख चाहिए, और 1 लाख वाले को 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ को 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ को उससे भी आगे चाहिए। तो ये नहीं हो रहा कि पैसा होने के बाद कोई रुक जा रहा है। आज दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो भी रुकने को तैयार नहीं है, उसके अंदर और ज्यादा पाने की कामना है। और कहाँ जाकर रुकेगा? कोई है पॉइंट? वो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ये वाला भाग चाहिए ही चाहिए। तो उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक ये चीज जो है वो हमको जीवन को चाहिए, और ये जो सारी चीजें हैं शरीर को चाहिए। तो दो तरह की आवश्यकता है, एक हमारे जीवन की आवश्यकता है और एक शरीर की आवश्यकता है। ऐसे दो चीजें हमको चाहिए। जीवन वाली चीजें निरंतर चाहिए, शरीर वाली चाहिए टेम्परेरी। कितना चाहिए? अब उसमें भी दो आया। एक तो हो गया भाई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक और दर्शन आया, उसमें क्या कह रहे हैं? जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। ठीक है, संतोषम परम। तो ये दर्शन कह रहा है ऐसा नहीं, जितना चादर उतना पैर फैलाएं, या जितना बड़ा शरीर है उससे थोड़ी चादर बड़ी हो। और दोस्तों के लिए भी हो, मित्र आ जाए, संबंधी आ जाए, तो उनको क्या करेंगे? चादर नहीं देंगे। तो वो चीज समृद्धि है। मतलब हमारी आवश्यकता पता हो और आवश्यकता से ज्यादा हो, कम नहीं हो, तभी उसको क्या बोलेंगे? समृद्धि। तो आवश्यकता के आधार पे हमारे पास उपलब्धता और उपभोग कम, उपलब्धता ज्यादा और उपभोग कम, इस जगह का नाम है समृद्धि। तो दो चीजें हो गई। समृद्धि में उपलब्धता है, तो समृद्धि जब करें अभाव का अभाव, तो ये वस्तु की उपलब्धता के साथ या उसके बगैर? साथ। तो अभाव का अभाव भी हो और वस्तु की उपलब्धता भी हो। वस्तु की उपलब्धता, ठीक है। अगर वस्तु उपलब्ध नहीं है, मान लो भोजन है ही नहीं, तब समृद्धि है क्या? कपड़ा नहीं है हमारे पास और हम बोले हमारे पास है, तो ये वाला भाग समृद्धि नहीं है। लेकिन ये वाला भी भाग समृद्धि नहीं है। अब समृद्धि कैसे आती है? तो समृद्धि तभी आएगी जब पहले जीवन का ये भाग निरंतर सुख वाला पूरा हो जाए, जो कि समाधान से होता है। क्यों चाहिए पहले? पहले क्यों चाहिए समाधान? पहले क्यों चाहिए? समाधान इसलिए पहले चाहिए क्योंकि कभी कोई चीज़ आ गई और उसका समाधान हमारे पास नहीं, तो हम चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मतलब समाधान होगा तो चीज़ों को, संबंध को, पैसे को, हर चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे, समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया। और कोई बात ध्यान में जाता है? जी। हमारी कितनी आवश्यकता है वो भी तो पता होना चाहिए। हाँ, मुख्य बात यही है। क्या है? अगर ये नहीं है तो कैप ही नहीं है हमारे पास। अगर हम निरंतर सुखी नहीं है तो हमको क्या मालूम कि कितना होने से सुख मिल जाएगा? क्योंकि जो ही आपके पास समाधान हो गया, समाधान में एक और बात छुपी है। क्या बात छुपी है? कि हमको कितना चाहिए भौतिक चीजें, ये भी पता, ये भी तो एक समाधान है। ये क्या एक समाधान हुआ कि नहीं? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि कितना चाहिए। फिर एक समाधान है कि कैसे मिलेगा, ये भी एक समाधान है। हमको मालूम पता ही नहीं कैसे मिलेगा और हम हमेशा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमको कल नहीं मालूम कि क्या होगा, कल मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कल मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा, कल इंश्योरेंस कंपनी डूब गई तो क्या होगा, मेरा बैंक ही डूब गया, लेके भाग गया तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो हमको दोनों चीज चाहिए। तो समाधान में ये बात शामिल है कि हमको समृद्धि कैसे मिलेगी, समृद्धि कैसे मिलेगी। जी भैया।
एक पीछे एक आगे, हाँ अभी ये वाला आगे दे दीजिए, फिर ये इधर रख दीजिए। हाँ, हेलो। हाँ आप जो बोल रहे हैं कि एक आवश्यकता हमको पता होना चाहिए, बराबर है, हाँ। बट वो आवश्यकता जो है हमारी, हम्म, वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं बताऊं कि आदमी स्वार्थी होकर पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है। हम्म, अगर आदमी को चाहिए एट द एंड परिवार के लिए, खुद के लिए अच्छा एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल सहाय, अगर जिस राष्ट्र में 100% मेडिकल फैसिलिटी हो, जैसे हेलीकॉप्टर आके आपको ले जाए वहाँ तक की, और आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, आपके घर से एक भी रुपया चोरी नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपको एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, तो लोग इतना जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, वो उसमें से 90% कमी हो जाएगी। हमारी जो इनसिक्योरिटी है वो इन 3 चीज़ों के लेके हमको दौड़ते रहती है पैसे के लिए, ठीक है। तो आवश्यकता का माप इसलिए बढ़ता जाता है। जब मेरे पास मतलब घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, तो ऐसा था कि एक फ्लैट हो जाए, फिर एक फ्लैट हो गया, फिर हुआ कि एक ऑफिस हो जाए, एक हो गया, फिर दूसरा हो जाए, फिर गाड़ी हो जाए, फिर 2 हो जाए। वो आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है कि इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही है। गाड़ी का लॉक करने के बाद भी 4 बार हम चेक करते हैं कि भाई बराबर लॉक हुआ कि नहीं, किया है तो भी चेक करेंगे, बिकॉज इनसिक्योरिटी। पैसा इसलिए लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा चाहिए कि कल कुछ और हो गया तो मैं भी बीमार हो गया, बच्चे भी हो गए, माँ बाप भी हो गए, सबका मेडिकल आ गया तो 10-10 लाख 50 लाख निकल जाएंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी है वो आदमी को स्वार्थी बनाती है और आवश्यकता बढ़ती जाती है। और दूसरी चीज़ है, ये लिस्ट में 2 चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा से रिलेटेड। कुछ चीज़ें हमारी चेतन को चाहिए, जैसे प्रेम है, करुणा है, ये हमारे आत्मा से फील करते हैं। शरीर से टच होके कोई नहीं बता सकता कि मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, वो फीलिंग है, हमको फील करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो हम अगर पाइप से जूस पी लेंगे तो शरीर को तो मिल जाएगा, हमारे आत्मा को नहीं मिलेगा, इसलिए हमको मुंह से लेना है। उसमें टेस्ट भी डालना है, अगर खट्टा है तो मीठा डालना है, भले कोई फायदा नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे हॉर्मोन्स को जगाएगा, हमारी चेतना को पूर्ण करेगा। तो आप जो 2 लिस्ट की बात कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, उसको एक तराजू में वापस नहीं तोड़ सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें शरीर को चाहिए, कुछ तुम्हारे माइंड में घुसी हुई है। अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बुरी चीज़ है, आपको खराब लगती है, अगर किसी को मुक्का मार दिया, ठीक है, तो वो अच्छा भी लग सकता है। अगर वो मेरा दुश्मन है और किसी ने उसको मुक्का मार दिया तो मुझे अच्छा लगेगा, बट किसी निर्दोष आदमी को मार रहा है, मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे बुरा लगेगा। तो सारी चीजें वापस सापेक्ष पे आके रुकती है। सही बात है, सही बात है। सापेक्षता भी है और कहीं निरपेक्षता भी है, आएंगे उस पर, दोनों है और उसके लिए तो फिर सर आप बोल रहे तो फिर स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। हाँ नहीं कि ठीक मतलब एकदम से कुछ मेरे को मतलब अब मैं देखिए- फीलिंग लेस हो जाऊंगा। सही बात है। उसमें भी देखिए 2 बातें हैं। जो पहला बात आप बता रहे हैं कि इनसिक्योरिटी, अगर मान लो किसी राष्ट्र में उसके पास हेल्थ केयर सिस्टम हो, एजुकेशन हो, फूड की सिक्योरिटी हो, तो सिक्योर होगा तो उसका लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है। मैं भी लंबे समय से कनाडा में रहता हूँ, मुझे कहीं पार्क करके उतना हेडेक नहीं है, मैं रोड पे जाता हूँ, मुझे कोई हेडेक नहीं है। हेल्थ सिस्टम सबको लगभग एक जैसा ही मिलता है, काफ़ी सिक्योरिटी है। एजुकेशन भी सभी को, जो नॉर्मल स्कूल गवर्नमेंट के हैं उसमें एक क्वालिटी की एजुकेशन भी मिलती है। अगर आप बेरोजगार हो गए तो उसका एक भत्ता भी मिलता है। लेकिन मटेरियल प्रोग्रेस का डिमांड वहाँ कम हो गया, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। लोग अभी भी मटेरियल प्रोग्रेस के लिए लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, कोई भी देख लो। तो ये थोड़ा सा सोचने का मुद्दा है कि ऐसा है कि नहीं है। दूसरा भाग है कि समृद्धि आ गई वहाँ पे, मान लिया संबंध वहाँ पे बहुत क्राइसिस है। मैं भी अपने पड़ोसी को सबको जानता हूँ और मुझे लगता है हर घर को जाऊँगा ना तो एक ही चीज़ की क्राइसिस है, वहाँ संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कोई संबंध अच्छा होता है ये भी वहाँ पे नहीं दिखता। और हम लोग, हमारी पत्नी आती ज्यूइश बैकग्राउंड से। ज्यूज में क्या है, एजुकेशन का बहुत बड़ा बोलबाला है। ठीक है, बहुत सारे कंट्राडिक्शन मैं आपको दिखा सकता हूँ हर जगह। तो वहाँ पे अभी ज्यूज कितने होंगे पूरी दुनिया में? 0.2%, राइट, इतना है ज्यूज। 14 मिलियन के आसपास होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी आगे हैं। अगर आप एजुकेशन के भी एंगल से देखेंगे तो दुनिया में जो बड़ा एक समूह है जिसने नोबेल प्राइज को जीता है पिछले 100 साल में, सबसे बड़ा कम्युनिटी कौन है? लगभग 22% से ज़्यादा, राइट।
भारत में सबसे ज़्यादा मैथ को लेकर, साइंस को लेकर, एजुकेशन को लेकर चिंता सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा चिंतित कौन है देश एजुकेशन को लेकर? इंडिया है, नहीं है? हर घर में सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या है? पढ़ो। अभी भारत में 125 साल हो गए लगभग नोबेल प्राइज़ के, 120-125 साल हो गया है, 1900 से चल रहा है। कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला? 5, और 7 ऐसे जो भारत से चले गए थे, जो NRI के मतलब विदेशों में रह रहे हैं, या तो ग्रीन कार्ड पे या वहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बच्चे भी पाए 7 वो हैं, टोटल 12, राइट? और पॉपुलेशन कितनी है? इतना बड़ा, फिर नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला? उसके पीछे भी आप जाओगे तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश है, एजुकेशन में भी बहुत बड़ा पुश है। लेकिन युद्ध के मामले में देखोगे, आज दुनिया की जो सबसे ज़्यादा है ना विवाद की जगह है, कौन सी जगह है? इजराइल ना। क्यों? शांति होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एंगल से आप देखोगे तो बहुत सारा मामला बहुत पेचीदा है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हर एक चीज़ के 2 पहलू अभी जैसे लगेंगे, तो नहीं, समाधान तो बहुत आसान है, समस्या ही कॉम्प्लिकेटेड है। अरे जैसे 2 धन 2, ये बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, एक तो मैं 2 धन 2 बराबर 1 नहीं करना है, एक गलत है। 2 धन 2 बराबर 3 मत करिए, गलत है, ठीक है। 2 धन 2 बराबर 5, ये भी मत करिए। फिर ऐसे बढ़ाते गए, है ना, चलो 7 9 करते जाए, ये समस्या हो गई ना। तो समस्या कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? अभी एक और बताते हैं आपको, 2 धन 2 बराबर 4, ये समाधान है? ये कॉम्प्लिकेटेड है? समस्या ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समाधान कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अगर समाधान कॉम्प्लिकेटेड होगा तो समाधान कैसे आएगा? तो कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स में है, समाधान में नहीं है। हमारा ध्यान नहीं है समाधान पे, इतनी सी बात है। ध्यान देंगे तो इसी 5 दिन में आप निरंतर सुख वाले सभी बातों को पकड़ के जाएंगे, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब क्या समझना है, पहले इस बात को समझते कि कहाँ से कमी हो रही है। ये जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम सुविधा की दिख रही है या अमीरी गरीबी आई, इसमें समृद्धि से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा इधर है, ये वाली चीज प्रॉब्लम की है। हम क्या सोच रहे कि अगर ये हो जाएगा, जो अभी आपने बात बताया, ये हो जाएगा तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी समाधान की चीज है, इसकी चीज ही नहीं है। सिक्योरिटी किस डोमेन की बात कर रहे हैं हम? सुरक्षा इस डोमेन में है, इधर का है ही नहीं। लेकिन हमको कहीं ऐसा सेंस हो गया है कि इधर होने से इधर सुरक्षा होता है ना? आप समझ रहे हो? तो जब भी हम ऐसा सोच रहे तो हमको चाहिए सुरक्षा, बट हम लोग इंगेज किधर हो जा रहे हैं? ये सुविधा वाला, कि इस पे कुछ करना है अपने को, इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये एक असम्पशन हमने बना लिया है और यही असम्पशन से हम चल रहे हैं। यही हमारे पास एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके अलग प्रोग्राम है और इसके अलग प्रोग्राम है। सिक्योरिटी इस तरफ से आएगी ही नहीं। आई होती तो जो रिच कम्युनिटी होती, उनका तो भाई गेटेड कम्युनिटी है, सब कुछ है ना। एक वर्ग ऐसा भी तो है जिसके पास कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। उनसे आप जाकर देखिए, वो ज़्यादा इनसिक्योर है कि सिक्योर है? फिर उसके होने से कहाँ प्रूव हो रहा है? अदरवाइज जो टॉप 1% लोग हैं उनको तो बहुत अभयता में जीना चाहिए, है कि नहीं? भय तो होना ही नहीं चाहिए। आप उनसे कोई भी प्राण भय जाकर देखिए, धन भय, पद भय, कोई भी धन, मान का भय कम है, ज्यादा है। अभी जो कंपटीशन है रिच लोगों में, वो पुअर से ज्यादा है।
किसी को बहुत नंबर 1 कंपनी बनानी है, लेकिन खाली अपनी कंपनी नहीं बनानी है, गूगल को बैठाना भी है, राइट है कि नहीं? एक्समेल आ रहा है ना, एक्समेल के लिए नहीं आ रहा है, जीमेल को खत्म करने के लिए आ रहा है। खत्म, आप रहो नहीं, हम ही रहेंगे बस। ये भय है कि अभय? तो जब टॉप के 2 कंपनी में भय अभय अभी चल रहा है, राइट, सिक्योरिटी नहीं है ना। अब गूगल देख लिया भैया, एक्समेल आएगा और प्रेसिडेंट उसके बगल में ही है कि नहीं? प्रेसिडेंट का सपोर्ट है और एक्समेल आने वाला है, बाकी सब कंपनियां धड़ाधड़ चल रही है, शेयर मार्केट एकदम हाई है, तो दूसरा कंपनी क्या करेगा? थ्रेट होगा कि नहीं? इनसिक्योरिटी आ गई। तो किस लेवल पे इनसिक्योरिटी नहीं है बताइए? किस लेवल पे नहीं है? मुद्दा ये है कि उस लेवल में सिक्योरिटी है ही नहीं। उस लेवल पे कोई डोमेन की बात ही नहीं है, एक्चुअली कोई और चीज चल रहा है, वो इधर की बात है। कोई प्रेसिडेंट बन गया तो प्रेसिडेंट को फियर नहीं है, उसका पद नहीं चला जाएगा एक दिन। कोई दूसरा आ लिया तो अब पता चला, लोगों ने रूमर फैला दिया इलान मस्क ही प्रेसिडेंट है डिफैक्टो, राइट? उसको स्टेटमेंट देना पड़ा, भैया कोई नहीं है, मैं ही हूं कुछ नहीं, वो प्रेसिडेंट नहीं है, मैं इधर हूं। क्योंकि उसको भय आ गया, यार कैसे, अभी मैं इलेक्शन जीत के आया, अभी बैठा भी नहीं, तब तो पता चल रहा है ये लोग रूमर फैला दिए, तुरंत उसका स्टेटमेंट, और बढ़िया एकदम समारोह में स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से एकदम साबित हो गया कि प्रेसिडेंट को पावर की भूख है, वो किसी को आने नहीं देगा। बोला इलान मस्क कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, मैं हूं, डिक्लेयर कर दिया। क्यों? तो ये क्या चीज बता रहा है? तो देखो, अब वहां भी एक साइकोलॉजिकल फियर तो है, जबकि उस पास पैसा है, अभी पद भी है, और पद इतना बड़ा है कि धरती पे किसी के पास इतना बड़ा तो पद नहीं है। आज के डेट में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उससे ज्यादा तो पावरफुल कोई पोस्ट नहीं है ना, कि है? नहीं है। लेकिन उसके पास भी इनसिक्योरिटी है। तो इनसिक्योरिटी इधर का मुद्दा नहीं है, इधर से है कुछ, वो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है? तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो पता चलता है, जो ही समाधान आया, समाधान का एक भाग है जिसमें आपको अभय होता है। समाधान का मतलब है विश्वास। समाधानों से क्या हो गया? विश्वास। कितना विश्वास? निरंतर विश्वास। दूसरा भाग है, इसको नेगेटिव बोलेंगे, भय से मुक्ति। समाधान का मतलब क्या हुआ? भय से मुक्त। जब तक मनुष्य में भय है, जैसे प्राण भय है, मरने का भय है, तो क्या नहीं है आपके पास? भय है तो सुखी कैसे है आदमी? अगर भय है तो सुखी है ही नहीं। ऐसे ही पद का, मान सम्मान का, धन का, किसी भी तरह का भय है तो भय का मतलब है समाधान नहीं है। भय है तो कोई रूप में दुख है, पीड़ा है। तो समाधान होने से सदा के लिए भय से भी मुक्ति है, अभाव से भी मुक्ति है। ठीक है? बल्कि और देखें, जैसे चोट लग जाए। हाँ दीदी। तो जैसे अभी आपने जो एक्समेल का एग्जांपल दिया, तो जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये तो होगा ही कि हम समाज को कुछ दे। जो संवेदनशीलता वाली बात है, वहाँ पे शायद वो लोग काम करते हैं। तो संवेदनशीलता का जो भी काम करते हैं, उसमें कहीं पे भी समाधान तक हम नहीं पहुँचते हैं। और उसमें होता क्या है, क्यों देना चाहता है? क्योंकि हमारे अंदर 2 तरीके से दे सकते हैं। एक है, मैं तृप्त हूँ, समाधानित हूँ, मेरे पास पूरा भरा पड़ा है, इसलिए मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास है तो मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे पास जीवन में अतृप्ति है, मैं तृप्ति को पाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि देने के बाद मुझे क्या हो जाए। तो एक अभाव से देना और एक भाव से देना, 2 तरीके से दे सकता है। अभी ज्यादा जो देने का काम है, वो तृप्त होकर या अतृप्त होकर? फिर तो इसका मतलब अतृप्त है तो समाधान तो पहले ही नहीं है। तो जब देगा तो लेने वाले के पास अभाव हो जाएगा या भाव? वो भी और पीड़ा में फंस जाएगा।
तो जो दे रहा है वो भी समाधानित नहीं, और जो ले रहा है वो भी समाधानित नहीं, तो दोनों दुखी हुए कि नहीं? तो देने वाला भी दुखी, लेने वाला दुखी। अच्छा, जब तक लेते रहेगा उसके अंदर कोई आत्मसम्मान होगा? आपके ऊपर रहमो करम पे मैं पढ़ रहा हूं, राइट? इसमें कोई आत्मसम्मान की बात है? तो लेने वाला सुख कैसे होगा? तो दोनों तरफ से खाली। अभी वही बात है कि इधर से दे करके वो भी वही कर रहा है कि इधर कंबल बांट करके उधर अपने भाव को पूरा करना चाहता है। कंबल और भाव अलग चीज है, यही तो अपने को सेपरेट करना है। ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। तो जैसे हम किसी को कुछ गरीब का एक उदाहरण देते हैं, जैसे रोड पे किसी की ज़रूरत है और हमने उसको दिया, तो उसमें फिर इतनी लालच क्यों दिखती है? अगर उसमें आत्मसम्मान फील नहीं होता है तो फिर तो लालच क्यों दिखती है? अब वो फिर वही, वो तो सारा लालच का रूट एक ही है ना। गरीब है या अमीर है, ये तो कमी है ना। वो तो लालच अमीर में भी है, क्योंकि उसको दे करके अपना टैक्स भी बचाना है, राइट? कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि उसका नाम बढ़ेगा, और नाम बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो जितना इन्वेस्ट किया उसके तुलना में बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे इलान मस्क है, भाई चलो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खर्च करना है, उसको खर्च किया, बढ़ोतरी कितनी हुई? धड़ाधड़ बढ़ रहा है, देखिए ना, प्रमाण है। भाई कोई भी आदमी जब भी वो दान कर रहा है, उसके दान देना भी एक स्ट्रेटेजी है अंदर से, वो उससे लाभ होता ही उसको, तभी दान दे रहा है। दान दे करके नाम क्यों खुदवा रहा है? उसके फिर टैक्स में कोई बचत है ना, और उसको उसके साथ साथ उसको फीलिंग भी चाहिए, तो वो भी थोड़ा पूरा करना चाहता है, राइट? तो एक काम से कितने चीज़ों को साध रहा है। बिजनेस भी ग्रोथ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नाम भी हो जाए, है ना, हम सुखी भी हो जाएं, सब काम है। तो ये तो दान कहीं और चला गया। लेकिन इनसे ना तो देने वाला समाधानित, ना लेने वाला समाधानित, क्योंकि उसके पास भी पूरा उत्तर नहीं है और इसके पास भी पूरा उत्तर नहीं है। ना तो इसकी जिज्ञासा तृप्त हुई, ना उसकी जिज्ञासा तृप्त हुई। हम लोग अपने में क्या हुआ है, हमारा मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। तो हमको समाधानित होने के लिए जो पहला चीज चाहिए वो है स्वयं का मूल्यांकन। गलती कहां से हो रही है? तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि हम तृप्त हैं या अतृप्त हैं। मान लो हम अतृप्त हैं और मान लिया मैं तृप्त हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लो मैं समाधानित नहीं हूं, लेकिन मान लिया है मैं समाधानित हूं, तो इसके प्रॉब्लम क्या है? हाँ? इससे क्या प्रॉब्लम होगा? दूसरे को होगा कोई प्रॉब्लम? पहले स्वयं को होगा। स्वयं को क्या प्रॉब्लम होगा? यही तो, अरे हर एक एज में आप 10 साल के बच्चे से पूछिए, समझे हो क्या उत्तर देगा? हाँ, मम्मी बोल रही उसको, राइट, तुम ऐसा नहीं करना। वो क्यों नहीं कर रहा है? उसको क्या लग रहा है कि मैं समझाऊं कि नहीं? वो अपने को समझा हुआ मान रहा है, और जब मम्मी समझा रही है तो वो क्या मान रही है? मुझे मालूम है। उसको नहीं मालूम। उसको क्या लग रहा है? मुझे मालूम है। मम्मी को, हर व्यक्ति तो मान ही रहा है ना कि मेरे पास समाधान है, उत्तर है, आप ही को नहीं पता है। वही तो बात कह रहा हूं, एक ही जगह तो प्रॉब्लम है कि अभी समाधान क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हर व्यक्ति अपने को क्या मान लिया। और इसमें ही सारा ट्रैप है, हमारे दुख का सारा राज इसी में छुपा है कि हम बिना समझे खुद को समझदार मान रहे। हमको पता है, ये हमने ये क्यों मानता होगा आदमी, जबकि पता नहीं है, फिर भी मान ले रहा है कि मुझे पता है। ये क्यों कर रहा होगा? देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि जानना उसका मौलिक काम है, वो जानना ही चाहता है। यही तो उसकी बनावट है मनुष्य की। हाँ, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट यही चाहना है ना कि मैं जान लूं, मैं समाधानित हो जाऊं। नहीं भी है तो भी क्या मान रहा है कि मेरे पास उत्तर है,
क्योंकि यही उसकी बनावट है, उसको हर प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब उसमें दो तरह के विचार आए। एक विचार बोलता है कि कोई मनुष्य संपूर्ण को जान नहीं सकता। कितने लोग सहमत हैं? कोई मनुष्य संपूर्ण को जान नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो एक तरह का उत्तर है कि मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, संपूर्ण को नहीं जान सकता। संपूर्ण कौन जान सकता है? भगवान। कोई जान सकता है, मनुष्य नहीं जान सकता, राइट? भगवान, जिसके पास भगवान वाली मान्यता नहीं है वो कहां पे है? कोई जान ही नहीं सकता। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अपने मन में क्या बैठाए हैं कि हम कभी भी समाधानित नहीं हो सकते, मतलब हम समस्या में रहेंगे। ये हमारी क्या है? मूलभूत मान्यता है। सोचो, हम क्या कर रहे हैं? हम समाधानित नहीं हो सकते। ये हमारे जीवन में आशा है या निराशा? तो अगर हमें मालूम होता कि हम समाधानित, मतलब हम तो मान के ही बैठे थे, हाँ, 50 लोग तो मान के ही बैठे थे। थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए और कुछ बात नहीं, बाकी हमको तो सुनाई दे रहा है। 50 लोग तो हम मान के ही बैठे थे कि एक टाइम पहले से कि हम समाधानी थे। तो हमें किस चीज ने यहाँ पे आके समाधानित होने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि हमारे अंदर कोई अपूर्णता है, हमारे अंदर कोई अतृप्ति है किसी कोने में। बहुत सारी चीज़ों को पाने के बाद भी एक कोने में खालीपन है, वो खालीपन मुझे भरना है। तो मेरे अंदर अभी कोई एक कोने में क्यूरियोसिटी है कि भाई उत्तर है कि नहीं है कहीं। इवन दो कि सब लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि नहीं हो सकता। यही तो द्वंद्व है। एक तरफ बोल रहे हैं हो ही नहीं सकता, और एक तरफ हम हल्का सा कहीं बचा है यार, कहीं हो जाए तो हो ही जाए। तो हम अपने मानव में जानने की चीज को खत्म नहीं कर सकते। अब वो कहां से आ रहा है इसका उत्तर मैं 1 या 2 दिन बाद दूंगा कि कहां से आ रहा है जो आपके अंदर इस पीड़ा को बनाए रखा है कि मुझे आगे जाना है। कोई रूट है उसका, उसको भी समझना है, तभी तो पूरा समाधान है। बट आज ये समझना है कि हमारे अंदर छोटी छोटी आशा लेकिन एक गहरी निराशा। निराशा इस बात का है कि कोई भी चीज सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे हम बोले क्लाइमेट चेंज, धरती एक दिन सारा क्लाइमेट इशू खत्म हो जाएगा और धरती पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है? धरती पे कभी युद्ध नहीं होगा और किसी भी परिवार में कोई संघर्ष नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, और धरती पे पूरी तरह से शांति होगी। कितने लोगों को लगता है? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये आशा है कि निराशा? हम सब निराशा में जी रहे हैं। और बाय एजुकेशन हमने इस निराशा को और बढ़ाया है कि घटाया है? बढ़ाया है। तो हम लोग कहां पहुंच गए? इस जगह पहुंच गए कि समाधान नहीं है। समस्या में जीना मनुष्य की नियति है और कोई भी समस्या में जीना नहीं चाहता। सोचो, एक तरफ कह रहे हैं समस्या तो खत्म ही नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ मनुष्य समस्या में जीना ही नहीं चाहता है। तो इससे दुख आएगा या सुख आएगा? तो ये दर्शन क्या कह रहा है कि पहली हमारी जरूरत ही है कि समाधान होना। पहली जरूरत क्या है? और समाधान हमको निरंतर चाहिए। हर एक मुद्दे पे समाधान चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं जिसमें हमको अनरिजॉल्व रहना है। कोई भी आप इशू देखो, भले ही आपको रिजोल्यूशन ना पता हो, लेकिन आप उसमें अनरिजॉल्व रहना चाहते हो या रिजॉल्व? कितनी मौलिक चीज है मानो में ना, कि समाधान तो हमको चाहिए ही चाहिए। मान लो हमारा बच्चे से फाइट हो गई, मान लो आज हमको सोल्यूशन नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते क्या है? पति पत्नी में मान लो नहीं बन रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। हम क्या हमारी चाहत है? सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन है ना, ये वाला नेक्स्ट ना कि ऐड, भाई यस भाई, ऐड या नेक्स्ट? हाँ, ऐड।
या वेरी गुड। समाधान चाहिए भैया। समाधान से सुख मिला, देखे नहीं। थैंक यू भैया समाधान प्रदान करने के। वो सेव हो गया, वो सेव हो गया। वापस जब भी जाना हो वापस पुनः लेकर के आ जाएंगे। तो दो तरह की चीजें हैं, एक तो है मानव मानव संबंध। एक क्या संबंध है? मानव मानव संबंध। और दूसरा है, एक है मानव प्रकृति संबंध। तो मानव मानव संबंध, चलिए संबंध, और मानव प्रकृति संबंध। पूरे धरती पे तो दो तरह की संबंध है, मानव मानव और मानव प्रकृति। इतना ही है पूरा रिलेशन। जी दे दीजिए भैया, आप आपको पीछे, हाँ इधर। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सुख और दुख। तो हम सबों ने एक भजन सुना होगा। उस भजन में इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया, बट वो भजन को हम इंटरटेनमेंट के हिसाब से सुनते हैं, डीप में जाता नहीं। तो मैं दो पंक्ति सुनाइए उसकी सुनाऊंगा। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। बस बाका गाएंगे नहीं, बढ़िया। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सुख और दुख, ये सारा जो हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, ये संक्षिप्त में इस दो पंक्ति में बता दिया गया है, जो भी कवि की रचना है उसने, कि हर इंडिविजुअल के लिए सुख का डेफिनेशन अलग है, हर इंडिविजुअल के लिए दुख का डेफिनेशन अलग है। वो बोलते हैं कि सुख और दुख मन के आधार के ऊपर होता है। हमारे लिए एक वस्तु सुख दे सकता है, वही दूसरे के लिए वो दुख दे सकता है। इट्स ऑल रिलेटिव थिंग्स। जस्ट आई थॉट आई विल शेयर यू। ठीक है, आप भी और संजय भाई भी एक ही बात कह रहे थोड़ा थोड़ा, कि चीजें बहुत रिलेटिव हैं, सापेक्षता में हैं। आइंस्टाइन भी जी यही बात कह रहे हैं कि सभी चीजें ईच इंडिविजुअल जो है, हाँ इंडिविजुअल में भी अपने है। मन के ऊपर डिपेंड करता है सुख दुख। मान लिया, जैसे भैया कल हमको एग्जाम्पल दे रहे थे कि जलेबी खाना सुख है, ठीक है। मान लो 2 जलेबी खाया, 4 जलेबी खाया, अब 2 किलो जलेबी खाना हो, फिर नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ईच इंडिविजुअल के लिए सुख और दुख वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। वो इतने सारे साधन, इतने सारे वो जो समृद्धि है, जी। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं। वो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड मामला ऐसे लग रहा है, लेकिन है इजियर भी समझना। तो पहले ये समझते हैं कि मानव मानव संबंध, मानव मानव का संबंध है और मानव प्रकृति का संबंध है। जैसे मेरा शरीर है, तो शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, तो ये संबंध कैसे जुड़ा है? प्रकृति के साथ। अब ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन का शरीर तो जिंदा नहीं रहेगा। तो शरीर को बने रहने के लिए पेड़ की जरूरत है कि नहीं? तो हमारा संबंध उससे है कि बनाना है? पहले तो इसमें संबंध है। अब पेड़ को बड़ा होने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए, राइट? तो मिट्टी के बगैर पेड़ नहीं है, और पेड़ के बगैर हमारा शरीर नहीं है। तो हमारा मिट्टी से संबंध है कि नहीं? और मिट्टी का पेड़ से संबंध। तो इस तरह से मिट्टी, पेड़ और मानव, ये क्या हुआ? जुड़ गया, राइट? इसको बनाना है या जुड़ा हुआ है? अब मान लो हम मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं,
पेड़ को काट रहे, जंगल को काट रहे, मनुष्य को भी बर्बाद कर रहे। तो ये संबंध जो था पहले से, वो संबंध समझ करके बिगाड़ रहे या बिना समझे बिगाड़ रहे? तो पहला तो यह संबंध है, संबंध बनाना नहीं है। अब धरती एक है और धरती पे एक है और धरती के अभी हमने टुकड़े कर दिए, राइट? ये देश, ये देश, ये देश, ये जो टुकड़ा कर दिया, ये टुकड़ा पहले से था या धरती अखंड थी? तो धरती पे टुकड़ा किया मानव ने ना। धरती अपने में क्या है? अगर धरती अखंड है तो धरती पे रहने वाली सभी चीजों में संबंध तो है ही, क्योंकि धरती ही अखंड है। अब धरती अखंड है तो सभी में संबंध है, तो उसमें मानव में भी एक संबंध है ना? तो संबंध बनाना नहीं है, संबंध क्या है? है। अब है का पता नहीं है। कैसे पता है कि है का पता नहीं है? क्योंकि मानव मानव संघर्ष, मानव संबंध की वजह क्या हो गया? मानव मानव के बीच में, संघर्ष है ना, यहाँ पे संघर्ष है। और दूसरा इधर भी संघर्ष है, यहां भी संघर्ष आ गया, राइट? संघर्ष दोनों जगह आ गया ना संघर्ष। तो दो जगह संघर्ष है। पूरी समस्या को समराइज करेंगे तो कितना समस्या है? एक है मानव मानव संबंध, मानव मानव के बीच में समस्या, वो परिवार में भी हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, कम्युनिटी में, बड़ी कम्युनिटी में हो सकता है, जिसको समाज कह रहे हैं आज, समुदायों में हो सकता है, संप्रदायों में हो सकता है, राष्ट्रों के बीच में हो सकता है। तो इसके बीच में एक संघर्ष है। और फिर दूसरा संघर्ष मानव प्रकृति। यही दो समस्या है, इतनी समस्या है एक्चुअली। पूरे धरती पे देखेंगे तो दो समस्या है। वो एक, हाँ, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि मानव के कारण ये संबंध से संघर्ष तक हम पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सारी ये सब। बट साइंटिस्ट ने 3 लाख साल का सारा एनालिसिस किया है और उन्होंने ये प्रूव किया है कि मानव नहीं थे तभी भी प्रकृति जो है, इट्स डायनामिक थिंग, वो उसमें इस तरह का जो डायनामिज्म है, परिवर्तन, इसको आप परिवर्तन के रूप में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो परिवर्तन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस सृष्टि का नियम है। इसके लिए परिवर्तन, उसमें अभी मानव का कितना कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक नहीं। बहुत साइंटिस्ट बोलते हैं कि मानव इज स्मॉल, एक बिंदी के रूप में है, बट प्रकृति में तो कंटिन्यूअस परिवर्तन तो चल ही रहा है। मानव है वो या नहीं है, वो 3 लाख साल का जो एनालिसिस हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने जो किया है, उनका ये रिजल्ट है। ठीक है, साइंटिस्ट भी आदमी है और उसके अंदर भी विचार है, और विचार समाधानित की नहीं है, ये आगे की कहानी है, राइट? अभी हमने क्या एस्यूम कर लिया? परिवर्तन बराबर संघर्ष। ये है क्या? जैसे मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी अगर है तो उसमें पेड़ पौधे बड़े होंगे, तो मिट्टी या पानी ही कन्वर्ट होके पेड़ पौधा बन रहा है। तो मिट्टी और पानी कन्वर्ट होके, परिवर्तित होके पेड़ बन गया। ये संघर्ष है, ये संघर्ष है। इसको संघर्ष बोलेंगे क्या? जैसे हमको मान लो पेड़ को चाहिए बड़ा होने के लिए पानी, तो पानी धरती पे है कहीं, वो पानी चला गया पेड़ में, ठीक है, उससे उसके शरीर पुष्ट होने के लिए मिल गया, बड़ा हो गया। तो ये पानी और पेड़ के बीच का संघर्ष है, परिवर्तन संघर्ष हुआ क्या? अब आएंगे वो तो सारे पार्ट पे आएंगे, कोई पार्ट ही नहीं बचेगा यहाँ। अगर पार्ट बचेगा तो समाधान कहाँ है? समाधान की तो पहली बात ही यही है, हर एक प्रश्न का उत्तर। इस दर्शन की एक मौलिक बात क्या बता, अभी आप, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत हैवी है, कंडीशनिंग क्या बोल रही है? मानव को हर प्रश्न का उत्तर, और यह दर्शन कह रहा है आपके प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं बचेंगे, हर प्रश्न का उत्तर है।
पहले उत्तर है कि पहले प्रश्न है? पहले प्रश्न है। अच्छा, पहले प्यास है कि पहले पानी? पहले प्यास है। बड़े अच्छा भाई, धरती पे अगर पानी नहीं आई होती तो क्या मानव पे प्यास आ जाता? मानव ही नहीं आएगा ना। पहले तो पानी, अब पेड़ पौधों को चाहिए पानी, पहले पानी आएगा कि पहले पेड़? क्योंकि पहले आवश्यकता नहीं है, पहले आवश्यकता को पूरा करने का अरेंजमेंट, तभी आवश्यकता आती है। पहले भूख आएगी कि पहले भोजन? भोजन। भोजन ही नहीं तो भूख कैसे लगेगी? तो उल्टा सोच रहे हम लोग। हाँ, जीते वैसे ना, एकदम सही कर रहे हो। तो पहले पानी धरती पे आती है। पानी, क्योंकि पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तो पहले इसका अरेंजमेंट हो जाता है। अब ये मिट्टी, पानी, हवा संतुलित है, इसका क्या प्रमाण है? पेड़। भाई मिट्टी, पानी, हवा संतुलित है, इसका प्रमाण हुआ कि पेड़ पौधे उग गए, राइट? अगर पेड़ पौधे उगते नहीं, मान लो उसके विरोध में हो जाता, तब क्या बोलते हैं? संघर्ष। लेकिन मिट्टी, पानी, हवा के होने से पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, अब पेड़ की पत्तियां गिरी, राइट? पेड़ की पत्तियां गिरी तो मिट्टी पहले से और रिच हो गई या पुअर? तो संघर्ष है कि पूरकता? तो मिट्टी के, पेड़ पौधे क्या हुआ? मिट्टी की ओर पूरक हो गए, तभी तो उसमें ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ी। अब ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ी तो केचुआ आएगा कि नहीं? उसके लिए आसान हुआ कि नहीं? सभी पेड़ पौधे, मतलब जो वॉर्म्स हैं वो प्रकट हो गए। तो पीछे जो भी हो रहा है वो आगे की चीज को और प्रकट कर दे रहा है, ठीक है? अब मान लो पेड़ पौधे आ गए, फिर उसमें जीव जानवर आ गए, क्योंकि जीव जानवरों को खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन। और भोजन आ गया उसके पहले ही पेड़ पौधे में, तो आ गए जीव जानवर। अब जीव जानवर आ गए तो जीव जानवर के आने से मान लो गाय आ गई, गाय ने खाया पत्ती, पत्ती खाकर दिया गोबर, गोबर गया मिट्टी में, तो पहले भी मिट्टी में पत्तियां सड़ करके फर्टिलाइजर बनती है, कंपोस्ट बनता है, राइट? और गाय ने खाया पत्ती और फिर गया गोबर वापस। इसमें प्रोसेस में कंपोस्ट बनने का प्रोसेस इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? तो गाय के आने से मिट्टी और ज्यादा समृद्ध हुई कि कम समृद्ध हुई? और समृद्ध हुई। और पेड़ पौधे क्या हुए? और समृद्ध हो गए। तो ये भी दिखता है कि पेड़ पौधे आ गए तो धरती और प्रॉस्पर हो गई, और उससे गाय सभी जीव जानवर आए। अब सभी जीव जानवर आए तो उनके आने के बाद मानव आया। अगर मानव प्रकट हुआ, इसका मतलब पहले की तीन चीजें ऑलरेडी संतुलन में थी कि उसके संघर्ष में है? संतुलन में है, तभी तो मानव प्रकट हुआ। तो मानव प्रकट हुआ, इसका मतलब धरती संतुलन में है। मानव प्रकट हुआ इसका मतलब, हाँ आप रखिए। मानव प्रकट होने के पहले ही धरती में बहुत सारे उथल पुथल हो चुकी है। देखिए, इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। आप उनका डिटेल उनका छोड़ देते हैं, अपन लोग तो अपने बात करते हैं। हमसे ज्यादा मैं नहीं, क्या उथल पुथल हुआ हो तो मैं भी मान रहा हूं। अरे धरती सूरज का एक मान लो गोला, धगधगता आग का गोला है, वो गोला ठंडा हुआ तो उथल पुथल ही मानोगे ना भाई? आग का गोला ठंडा हुआ, ये उथल पुथल है कि नहीं? फिर ठंडा हुआ तो उस पर भूकंप आए, भूकंप आए तो सब मान लो गड्ढा बन गया, ये बन गया, ये उथल पुथल है कि नहीं? यही इसी को मैं वही मैं भी बात कर रहा हूँ, बस खाली हम निष्कर्ष अलग निकाल रहे हैं। ये जो गड्ढे बने, ये बने, बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्फ्यूज हुआ। हाइड्रोजन मान लो सबसे पहला परमाणु, कभी भी पानी बनेगा उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? हाइड्रोजन। अब पहली चीज में जो धरती में सबसे सिंपलेस्ट चीज है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पेट में ही पानी है,
हाइड्रोजन के पेट में क्या है? पानी, उसके गर्भ में छुपा हुआ है। अब आगे जाकर हाइड्रोजन ये उथल पुथल हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्फ्यूज हुआ, इससे बना पानी। और भूकंप आके पहले से गड्ढे होके रखे थे तो पानी को ठहरने का मिल गया जगह। तो उथल पुथल होने से पानी गड्ढे में आया और गड्ढे के अंदर पहले से मिट्टी है, मिट्टी के अंदर है अम्ल और क्षार, और अम्ल क्षार मिलने से उसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस शुरू हुई। इस केमिकल प्रोसेस शुरू होने से उसके अंदर सेल बना बाद में, राइट। तो ये जो उथल पुथल है ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था? आप इस ओर लेके जा रहे हैं कि हम मानव ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाँ। हमारे कारण ही सब हो रहा। मैं हमारा ये पॉइंट है कि मानव के आने के पहले भी इस तरह की, वही मैं पॉइंट उल्टा बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब तक मानव आया है, भाई मानव आने के पहले देखिए 3 चीजें हैं। एक है पदार्थ, एक क्या है, इसको इधर लिखता हूं मैं, मिटाना बहुत बढ़िया है करो साहब। और मैं सोच रहा हूं इधर लगा तो नहीं, देखते लगा भी नहीं भाई। कितना बढ़िया। हाँ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी खराब चीज नहीं है, इसकी जरूरत है, सदुपयोग होना चाहिए उसका। बस बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहली चीज अगर धरती पे होगी तो उसको हम नाम दे देते हैं पदार्थ। पदार्थ का मतलब है मिट्टी, पानी, हवा। पदार्थ का मतलब मिट्टी, पानी, हवा, ठीक है। बहुत मोटा मोटा बात, ठीक है। ये हो गया पदार्थ। एक तो एक चीज आई, पदार्थ आया तो पदार्थ में बहुत सारा उथल पुथल हुआ। सबसे ज्यादा उथल पुथल कहाँ हुआ? इसी में हुआ, राइट। अब इसमें उथल पुथल के बाद ये सब चीज आई, फिर इससे आया पेड़ पौधे। इससे क्या आया? तो उसको हम नाम दे देते हैं प्राण, प्राणावस्था। अगर और बोले तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, एक दूसरी स्टेज आई, वो आ गया प्राण। प्राण आया तो अभी भी उथल पुथल चल रहा है, लेकिन ये पहले के तुलना में उथल पुथल कम हुआ या ज्यादा? कम ही हुआ उथल पुथल। इसने और संतुलन को ला दिया, तो इसके आने से संतुलन और बढ़ा, राइट। फिर इसके बाद आए जीव जानवर, उसको मैं लिख देता हूं जीव अवस्था। तीसरा चीज क्या है? जी, इसमें पशु पक्षी चिड़िया सब आए, उन्होंने पेड़ को खाया, फिर उसके बीज को कहीं ले गए, बंदर ले गया, यहाँ वहाँ फैला दिया सब जगह, ठीक है। तो अब बंदर चिड़िया सब खा रहे, लेकिन पेड़ पौधे क्या हो रहा है? बढ़ रहे और डाइवर्स हो रहे। जीव जानवर आए, अब एक जगह मान लो, एक बड़ी अच्छी 4 मिनट की फिल्म है, उसमें हाउ वुल्फ चेंज द रिवर, देख सकते हैं, अमेरिका की कहानी है। तो मान लो हिरन है, पहले कहीं भी जाके खाता है, कुछ भी खा सकता है पेड़ पौधा। एक उसमें शेर आ गया, तो शेर आने के बाद क्या हुआ? टाइगर आने के बाद क्या हुआ? वो हिरन कहीं भी जाएगा या एक निश्चित जगह में रहेगा? उसकी टेरिटरी बन गई, तो अब हर चीज को खा सकता है? नहीं खा सकता। उससे जो प्लांट में डाइवर्सिटी बढ़ी होगी कि घटी? बढ़ गई, क्योंकि सब चीज को तो खा ही नहीं रहा है, तो और चीजें आने लगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी है, 4 मिनट का हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे उसके आने से डाइवर्सिटी और बढ़ गई और पेड़ पौधे और ज्यादा पुष्ट हो गए। तो जानवरों के आने के बाद पेड़ पौधे पुष्ट हुए और दूसरे जानवर भी पुष्ट हुए, मिट्टी भी पुष्ट हो गई, है ना। तो ये क्या कर रहा है? इसने इसको पुष्ट किया, इसने इसको भी पुष्ट किया, इसने इसको पुष्ट किया, इसने भी इसको पुष्ट किया, इसने भी इसको पुष्ट किया और इसने भी इसको पुष्ट। ये अरेंजमेंट दिख रहा है इसमें। तो सभी एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हैं, क्रम से आए। तो जैसे जैसे आया तो धरती भी और ज्यादा संतुलित हो गई। जितना भूकंप पहले आया होगा और जितना भूकंप बाद में आया, उसमें से कब ज्यादा आया होगा?
पहले, तो उसमें और ज़्यादा, बल्कि ये भी हो गया कि भूकंप आने का एक निश्चित स्वरूप है। अब भूकंप आया, भूकंप क्यों आया? मान लो ज्वालामुखी आई, बहुत बड़ी ज्वालामुखी, तो अंदर क्या हुआ? अंदर एक केमिकल है, पूरा पकवान पक रहा है। केमिकल क्या है? कुकिंग चल रही है। तो अंदर एक बहुत बड़ा भट्टी है, भट्टी के अंदर सब कुक हो रहा है, और जब वो कुक होके तैयार हो रहा है तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, अंदर से निकला सब लावा, और चारों तरफ फैल गया। आप कहीं भी देखिए समुद्र में जब ये ज्वालामुखी आती है तो वहाँ क्या बन जाता है? आइलैंड बनता है ना। आइलैंड बनने का प्रक्रिया देखिए। तो ये जो ज्वालामुखी आ रही है उसके अंदर से सब ऐसा लग रहा है कि पूरा धुआं धुआं, कितनी चीजें आ गई। लेकिन आने के बाद क्या हुआ? उसके आने के बाद पेड़ पौधे, जीव जानवर, सब एक धरती बन गई, और उसमें सभी मटेरियल आ गया। वो मटेरियल कहाँ था? पहले धरती के अंदर। पहले कुकिंग हुई, कुकिंग होने के बाद जब धरती के अनुकूल है ऊपर, तब अंदर से आ गया बाहर। अब वो धरती के लिए क्या कर रहा है? पोषण। धरती को और क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? अब जीव जानवर आ गए, तो इसमें और प्रक्रियाएं आगे चली। चलते चलते कहाँ आ गया? इससे एक और चीज प्रकट हुआ, वो क्या है? मानव। ये कहाँ आ गया? अब मानव आ गया। मानव आने में इसका रोल है कि नहीं? इसका भी रोल है और इसका भी रोल है। मानव आ गया, इससे ये पता चलता है कि यहां तक अभी मानव ने कुछ किया क्या? मानव को मानव ने बनाया है? मानव को मानव ने नहीं बनाया। मिट्टी पत्थर को बनाया मानव ने? इसको बनाया? अभी तक कोई रोल नहीं। अभी हम वहीं पे रखते हैं जहां तक मानव प्रकट हुआ। उसके आगे कहानी आगे, पहले पीछे की कहानी कर लेते हैं। ठीक है जी। दो क्वेश्चन है मेरे जी। एक तो जैसे आपने बताया कि जीवावस्था के बाद मानव की जो भी ज्ञान अवस्था है हुआ है, तो जैसे हमने सुना है और देखा भी है मूवीज वगैरह में कि डायनासोर्स थे और हाँ, फिर चले गए। चले गए। तो फिर उनकी जो पूरकता थी मानव के लिए वो नहीं चाहिए थी, मतलब हाँ, तो देखो कोई क्या हो कोई रहा है क्यों चला जाता है? एकदम। तो डायनासोर आया, उस समय धरती पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन एक गर्म करने वाली चीज है। कार्बन से क्या हो रहा है? गर्मी। धरती का जितना तापमान है उसमें मानव आएगा तो उसका भी एक कोई टेम्परेचर है। तो आया, उसमें बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ पौधे हुए, 200 300 मीटर ऊंचा। वो पेड़ पौधों ने क्या किया? वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पीने वाले पौधे, उन्होंने क्या हुआ? उसको पी लिए, डाइजेस्ट कर लिए अपने अंदर। उसको खाने वाले भी बड़े बड़े जीव जानवर, पेड़ पौधों को, क्योंकि उसको खाने वाले भी चाहिए। तो जीव जानवर की साइज, अब इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा जानवर आएगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वो भी आ गए, वो खा कर रहे हैं, सब लोग खा करके क्या कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आया बहुत सारा भूकंप, जो भी है पूरा धरती पे उलट पुलट हुआ, और वो सारा पेड़ पौधा और वो सारा डायनासोर चले गए धरती के अंदर। क्या बन गया? कोयला। वो क्या बन गए? कोयला आ गया अब धरती में। तो कोयला आ गया। कोयला आने कहाँ से कोयला आया? ये जो धरती के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड था उसने पी करके धरती के अंदर दबा दिया। धरती में ही ये प्रोसेस हो गई। अब ये कोयला आ गया तो धरती का तापमान थोड़ा बदल गया। अब इस बदले हुए तापमान में मैटर है, प्लांट आ गया, उसमें जानवर भी आ गए। लेकिन एक चीज और आ सकती है, क्योंकि एक ऐसा हवा बन गया उसमें, क्योंकि पिया तो एक हवा का रेशियो बन गया कि भाई इसमें नाइट्रोजन इतना होगा, कार्बन का इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इतना होगा। ये मानव ने तो नहीं बनाया ना। तो ये सब चीजें पहले आई। उसके दबने के बाद जो धरती का तापमान बना, उस तापमान में एक और रचना संभव हुई, वह है मानव शरीर रचना। ठीक है, अब मानव के आने से प्रकृति में क्रियाएं बढ़ गईं। जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है? यहाँ पे एक क्रिया है जो कि संगठन विघटन, मतलब कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, इतना ही चल रहा है। यहाँ आया तो इतना तो चल ही रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन आ गया जो कि यहाँ नहीं था। तो ये एक क्रिया बढ़ गया।
तो क्रियाओं में प्रॉस्पेरिटी आई कि नहीं, और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसमें एक और चीज़ आ गई, इसमें ग्रोथ, ये बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा था, पत्थर रख दो पत्थर बढ़ता नहीं, ये क्या है, ले रहा है और इसी से बढ़ रहा है। तो इसमें और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई। बढ़ना मतलब प्रॉस्पेरस होना, तो पेड़ पौधे और प्रॉस्पेरस होने लगे, और जब होने लगे तो फिर जीव जानवर आए। जीव जानवर आए तो वही जो पेड़ पौधे हैं और जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, उसको संतुलन करने के लिए तो जीव जानवर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। और मानव शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो एक मशीन पहले से ही सेट हो गई कि मानव आएगा तो सांस लेगा, सांस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और मशीन पहले से बन के तैयार। तो पेड़ पौधा ने लिया पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ दिया ऑक्सीजन, इन्होंने लिया, ये मशीन की सेटिंग हो गई। इस सेटिंग से क्या हो रहा है, मानव के प्रकट होने के लिए अनुकूलता। तो जीव जानवर है तो इसमें एक और क्रिया जुड़ गई जो पहले नहीं थी, वो है मानने की क्रिया। वो मान करके उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, उसके अंदर एक जीने की आशा, वो जीना चाहता है ना। तो इस क्रिया से ज़्यादा, इसकी तो छटाई कर देते हैं तो बढ़ता है, और इसका अगर हाथ पाँव नाक कान छाट देंगे तो नहीं बढ़ेगा। क्यों, इसके अंदर अब जीने की बात आई, तो जीने के लिए वो काम कर रहा है। फिर आगे आया मानव, मानव आया तो एक और फंक्शन आ गया, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्शन, कर्म स्वतंत्रता। तो ये जैसे जैसे प्रकृति आगे जा रही है, इसके फंक्शनैलिटी में और ज़्यादा रिचनेस आ रहा है, और ज़्यादा तरह के फंक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों इसके पूरक हुए, तो ये है तभी ये आया। यहाँ तक मानव का कोई रोल नहीं है। इसका हम एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम दे रहे हैं अस्तित्व। ये क्या हो गया, इसको नाम दे रहे हैं अस्तित्व। अभी तक क्या है, अस्तित्व, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। तो अस्तित्व के होने में मानव का कोई रोल नहीं है। इवन मानव के अस्तित्व के होने में मानव का कोई रोल, अभी तक इतनी बात पकड़े। तो ये हो गया अस्तित्व। अब आया मानव। मानव ने कुछ किया मिट्टी के साथ, कुछ किया पत्थर के साथ, कुछ किया हवा के साथ, कुछ किया पानी के साथ, जो आपको दिख रहा है। तो मानव जब मिट्टी के साथ किया तो अभी भी पदार्थ रहेगा धरती पे, अभी भी क्या है, पदार्थ है, मिट्टी पानी हवा। लेकिन वो पदार्थ थोड़ा बदल गया, किसके इंटरफियरेंस से। तो मिट्टी अभी भी है, ठीक है, लेकिन आप खेत में जाइए, मिट्टी वहाँ है, लेकिन मिट्टी में एक और चीज आ गई है, वो है फर्टिलाइजर, वो है दवाइयाँ, केमिकल आ गया है ना। तो ये किसने डाला, मानव ने। ऐसे मान लो पानी है, पानी अभी भी धरती पे अस्तित्व वाली ही पानी है, लेकिन पानी में कुछ और चीजें हैं, ठीक है। ऐसी हवा है हमारे पास, हवा में हमने कुछ और डाल दिया। ये जो पीछे पेड़ पौधे जानवर दब करके अंदर गए थे, उसको हमने बाहर निकाला। तो कोयला को हवा में डाला और हमने क्या कर लिया, विकास हुआ कि नहीं। विकास का मतलब इतना ही हुआ, आदमी कुल मिला के किया क्या विकास में, कोयला को अंदर वाला बाहर कर रहा है, यही श्रम है। असली बात तो यहाँ पे जाके छुपी है। उसने एक काम कर लिया भाई, काम ढूंढ लिया कि जो भी अंदर दबा है उसको निकालो बाहर, क्योंकि उधर ही रहना चाहिए, उसका सही जगह पे डाल रहे हैं, राइट। अब वो हो गया मिट्टी पानी हवा। ऐसे ही पेड़ पौधे आए थे, है ना। ये हो गया आपका मान लो एक बात। दूसरा है पेड़ पौधे, है ना, जिसको हम कह रहे हैं प्राणावस्था। पेड़ पौधे पहले भी थे, अभी भी हैं। सामने लगा है अब यहाँ पे एक, ये पेड़ पौधा वही है जो पहले था या इसमें कुछ बदल गया, कुछ बदला। तो मानव ने उसमें कुछ ऐड ऑन किया। अब उसके अंदर जेनेटिक, जितनी हमारे एजुकेशन बढ़ी, साइंटिस्ट बढ़े, तो साइंटिस्ट जाके अंदर अंदर जाके कलाकारी कर दिए, राइट। कला बना, तो कला तो वही है। तो आर्ट,
फॉर्म में जाके उसके अंदर बदल दिए। तो पहले मान लो बैंगन कुछ और है, अभी कुछ और कर दिया, उसके अंदर आर्ट डाल दिया, राइट, कलर बदल दिया। टमाटर का तो आर्ट हुआ कि नहीं, कलर ही तो है, राइट। बड़ा अमरूद कर दिया, देखो कितना आर्ट है। बीज था, बीज निकाल दिया। पपीते के अंदर बीज था, बीज निकाल दिया। भाई आर्ट हुआ कि नहीं, कितना बढ़िया आर्टिस्ट है मानो। तो उसने बीज ही निकाल दिया उसका, ठीक है। क्यों, खाने में परेशानी आ रही थी, हमको चाहिए सुविधा, राइट। सुविधा हो गई, हम लोग सुख चाहिए था, सुख के लिए पकाया पपीता, पपीता में मज़ा नहीं आया क्योंकि बीज निकालना है। अब बीज कौन निकाले, इसलिए हमने एक एजुकेशन बनाई, एजुकेशन पूर्वक बढ़िया ज्ञान दिया, क्या, साइंटिफिक ज्ञान। उसको अंदर गए, अंदर जाके उसका बीज ही खत्म हुआ। अब आगे उगेगा ही नहीं। अब तो भैया लैब में बढ़िया पपीता बनाएंगे, है ना। आप सबको खरीदना है मेरे से पपीता। अब बीज तो पहले आपके घर में है, प्रॉफिट कैसे होगा, राइट। हमको पैसा भी कमाना है ना, खाली बीज खाली तो ऐसे ही है, तो पैसा भी कमाना है। पैसा कैसे कमाएंगे, आपके पास बीज ही खत्म कर देते हैं। बीज हमसे खरीदो और बढ़िया पपीता लो, बड़ा, और उसमें बीज भी नहीं, राइट। अब भैया हम पपीता खा के खुश, राइट। ये सब चीज़ हुआ, तो हमने प्राण अवस्था को बदल दिया। बदला कि नहीं, तो ये दिख रहा है। अब जीव जानवरों की बात आई, हम तो किसी चीज़ को छोड़ने वाले हैं नहीं। अपने हाथ में जो आ जाए, कलाकारी है, उधर भी किया। सारा गाय फाय जो भी हो, जंगल फंगल का सब बदल करके अपने मन मुताबिक किया। कुत्ते, बिल्ली, गाय, कुछ भी ले लो, सबको आदमी ने, और उनका जो रहने का जगह है उसको भी बदल दिया। क्योंकि कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, वो किसी जगह में है, और उसका जगह ही बदल दिया, फिर वो क्या करेगा, फिर तो कुछ और ही करेगा जो उसको करना था। तो उसने जीव जानवरों को भी बदल दिया, ठीक है, ये भी बदल दिया। फिर उसने क्या किया, मानव के साथ भी कुछ किया। मानव के साथ कुछ किया कि नहीं किया, तो मानव के साथ भी कुछ किया। और मानव के साथ करने में उसने बनाया 2 चीज, 3 चीज। एक बनाया परिवार, तो परिवार में कुछ किया। दूसरा बनाया समाज, और तीसरा बनाया व्यवस्था। हाँ, अच्छा यहाँ से कर दें, अरे भैया फिर अच्छा वो ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। अब गाट इट एक एक बात से समझने से ही होता है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि बगल में चले जाएं अपना कथा ठीक है भाई। अब तो बगल होता है ना इंडिया में, भाई उधर वो आ गया, बगल से निकल ले तो परिवार, समाज और व्यवस्था, 3 चीजें आ गई, है ना। मानव ने तो परिवार बनाया, तो परिवार में हर जगह आज सबसे ज्यादा देखोगे संकट कहाँ है, बच्चे आज शादी करना ही नहीं चाहते। सिंपल, परिवार बनाने में सबसे ज्यादा अगर कहीं दुविधा है तो किस में आ गया, परिवार बनाने में। ऐसे ही समाज में समस्या, तो मानव ने क्या किया, जो किया, तो इधर कुछ किया। और मैं वो कलर ढूंढ रहा था मैं से दूसरा कलर निकाल के उसको करता हूँ, लेकिन वो कलर ना इधर ही है। हाँ धीरे धीरे भैया, अभ्यास। तो मानव ने इधर कुछ किया, है ना, मानव ने इधर कुछ किया, मानव ने इधर कुछ किया, और फिर मानव ने परिवार में कुछ किया, यहाँ भी कुछ किया, और इधर भी कुछ किया। ठीक है, ये मानव ने सब बनाया। ये जो मानव ने बनाया इतना, इसमें 3 की बात अभी नहीं कर रहा हूं, है ना, पहले यहां तक आते हैं। इसको मानव ने बदल दिया। अभी ये जो है इसका हम एक नाम देने जा रहे हैं, इसका नाम है संसार। ये क्या है, तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया अस्तित्व और दूसरा हो गया संसार। संसार मानव का बनाया हुआ है और अस्तित्व बना हुआ है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है। मिट्टी अस्तित्व में भी है और मिट्टी संसार में भी है। पेड़ पौधे अस्तित्व में भी हैं और पेड़ पौधे, मानव अस्तित्व में भी है और मानव, और ऐसे ही परिवार भी अस्तित्व में है, जो अभी बताऊंगा आगे।
परिवार भी अस्तित्व में है और परिवार संसार में है, समाज भी अस्तित्व में है और समाज, और ऐसे ही व्यवस्था भी अस्तित्व में है और व्यवस्था संसार में है। तो दो चीजें हैं, एक है अस्तित्व और दूसरा है संसार। अस्तित्व में हर कुछ पूरकता है, एक के होने से दूसरे का होना है, एक का होना दूसरे के लिए संघर्ष नहीं है, एक का होना दूसरे के लिए एसेट है। मतलब मिट्टी का होना पौधों के लिए एक एसेट है, पानी का होना उसके लिए एक एसेट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों का होना मानव के लिए एक एसेट है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसके होने से मानव का होना बना हुआ है। तो सारा समस्या कहाँ है? अब आदमी संसार को देख रहा है या अस्तित्व को देख रहा है? आज संसार को देख रहा है, और संसार को देख रहा है तो उसको देख करके कैसा लग रहा है? दुख, गड़बड़। तो दुखी किससे हुआ? अस्तित्व से कि संसार से? संसार से दुखी है। अब उसको क्या चाहिए? इस दुख से मुक्ति। क्या चाहिए? और दुख से मुक्ति का फाइनल मुक्ति जानते हैं क्या है? ये तो भौतिकवाद का है, आदर्शवाद को उसके पहले ही आ गया मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मुक्ति चाहिए ना। किससे मुक्ति चाहिए? हाँ हाँ भैया भैया वो दे दीजिए, लाइए लाइए। नहीं हाँ बैठ के, बढ़िया 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 जयंती भाई को। ऐसा है, एक कहावत है, एक कहावत है कि जिस इंसान की सांसें बहुत हैं और इच्छाएं नहीं हैं उसको मोक्ष मिल गया, और जिस इंसान का सांसें बहुत कम हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनको मौत हो जाती है। तो मुक्ति का ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गया। अब बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेट फाइनल ये है, मोक्ष मतलब संसार से मुक्ति। संसार क्या है? भाव सागर है। संसार माया है, भाव सागर है। संसार में क्या है? दुख है, और हमको दुखों से मुक्ति चाहिए। तो फाइनल मुक्ति क्या है? जन्म मरण के। क्योंकि संसार में कैसे आया मैं? जन्म हुआ, तो जन्म है तो जरा है और मरण है, और जरा है मरण है तो दुख है, और फिर हमको दुख चाहिए नहीं, इसलिए दुख से चाहिए मुक्ति। तो दुख से मुक्ति के लिए क्या है? जरा मरण से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण ही क्या है? बंधन है। फाइनली क्या है? संसारी बंधन है। तो संसार के बंधन से मुक्ति। ये आज हो रहा है? संसार बिगड़ा है कि पहले से था? 1000 साल पहले। अरे पहले भी लोग दुखी हुए ना, किसको देखकर दुखी हुए थे? संसार को देखकर। आज की बात है, हम बौद्ध मठ में थे, वहाँ पे हम विपस्सना करते रहे। उसके बाद हमको लगा हमको भिक्षु बनना है, हम चले गए बौद्ध मठ में। 2 साल रहे, अपना जो भी ध्यान करना है, साधना करना है किया। करने के बाद हमको क्या समझ में आया? वहाँ फाइनल यही था कि संसार से मुक्ति चाहिए। समझ रहे? जन्म मरण ही मनुष्य के लिए दुख का कारण है। तो दुखों से मुक्ति का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ये हमने वहाँ पे, फिर आगे गए, मैं गांधी आश्रम में था 2-3 साल, वहाँ भी उसी के पैटर्न में थोड़ा अलग ढंग से बात है। वहाँ भी मोक्ष वही है, बट चीज़ें अलग हैं। बट ये समझिए कि मनुष्य दुखी हो रहा है तो मनुष्य दुखी संसार में है। एक और चीज है, वो है अस्तित्व। और अस्तित्व में क्या है? व्यवस्था। अस्तित्व में क्या है? और इसमें दुख नहीं है, इसमें क्या है? पूरकता है, संबंध है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहां है ही नहीं। कहां नहीं है? अब हम सारा जो एजुकेशन ले रहे हैं आज, वो किसके बारे में है? संसार के बारे में कि अस्तित्व के बारे में? जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स, मान लो संसार में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किधर है? संसार में। किसने बनाया ये? मानव ने। मानव ने कुछ किया,
तो लाखों साल में कुछ 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 करते 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 ये पहुंचा। फिर उसका स्टडी कर रहा है, ह्यूमन स्टडी कर रहा है, तो संसार की ही स्टडी कर रहा है। और प्रॉब्लम किधर है? तो उसको एड्रेस करना चाहता है। एड्रेस करने के लिए कुछ स्टडी कर रहा है, मान लो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? अब संसार में कुछ चल रहा है, मानो कुछ पैसे के साथ लेन देन कर रहा है, अब उसमें समस्याएं बढ़ती जा रही है, फिर उसी का स्टडी कर रहा है और उसी के स्टडी से कुछ सोल्यूशन लाना चाहता है और वापस संसार में दिया, तो समस्या बढ़ी कि घटी? बढ़ी, क्योंकि स्टडी किसने किया था? और संसार में क्या है? समस्या। तो समस्या का स्टडी किया और स्टडी के बाद जो कंक्लूजन पीएचडी बना, उससे 10 समस्याएं और खड़ी हुई। फिर आगे गया काम, 10 समस्या को लेकर फिर एड्रेस करना भाई, क्योंकि उसको चाहिए समाधान। 10 समस्या को लेकर फिर एक शोध हुआ और सब लोग शोध किए और करते 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 वापस कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन के बाद 10 की समस्या कितने में कन्वर्ट होगी? 100 में। लीजिए, अब 100 समस्या को हल करना है, क्योंकि समस्या बढ़ रही है। कि पहले तो था पपीता खाने की समस्या, अब क्या है? पपीता के साथ बीज था, उतनी समस्या थी। अब पपीता खा रहे, उसके अंदर है केमिकल, राइट? उसके अंदर, क्योंकि वो बीज निकाल दिया तो बिना केमिकल का पपीता ही नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक दवाई भी, उसको प्रॉफिट लेना है भाई। पपीता उगाओगे तो इसके साथ ये दवाई, दोनों साथ में चलेगा, राइट? तो हमने खाया पपीता, पपीता के साथ साथ लिया कैंसर, समस्या बढ़ गई। अब एक स्टडी होना चाहिए, कैंसर का इलाज कैसे है? तो उसमें साइंटिस्ट आ गए, शोध चल रहा है भाई, कैंसर का हल ढूंढो, राइट? अब कैंसर का हल ढूंढो तो पहले रहा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पूरा शरीर ही डैमेज हो जाता है। अब एक नया शोध शुरू, अब कीमो को कैसे एड्रेस करोगे? तो इस तरह से हमारा शोध आगे बढ़ा। किसको हल करने के लिए? संसार को हल करने के लिए। इधर एक्चुअली समाधान है ही नहीं। समाधान किधर है? अस्तित्व में। हमारा अस्तित्व का अध्ययन ही नहीं हुआ, ठीक है? किधर प्रॉब्लम है? संसार में। और सॉल्यूशन किधर है? तो अब हमको क्या करना है फिर? बस इतना काम है भाई। है ना? अगर इधर का अध्ययन हो गया तो उधर सॉल्यूशन मालूम है हमको क्या करना है। तो हम लोग इस शिविर में क्या करेंगे कि संसार की बजाय अस्तित्व का अध्ययन करेंगे। अब इसमें क्या है, एक और बड़ी खूबसूरत चीज, जब हम अस्तित्व को अध्ययन कर रहे हैं तो अस्तित्व में सबके जीने का प्रावधान है। मिट्टी के होने का प्रावधान है, इसका एक पर्पज है। इसके भी होने का कोई मीनिंग है, कोई पर्पज है, कोई प्रयोजन है, इसका कोई रोल है। इसका भी है, इसका भी है, सबका रोल है ना? तो जब हम इसको समझेंगे तो जो ही मैं समझूंगा तो इसके 2 फल आएंगे। एक तो है मानव मानव संबंध, तृप्ति यहां पे, और दूसरा है मानव प्रकृति संबंध, तो दूसरी तृप्ति। तो इस तरह से 2 जगह संतुलन है इसमें। एक मानव मानव के बीच में संतुलन है और एक मानव प्रकृति के बीच में संतुलन है। ये संतुलन बनाना है कि है? अब इसको अपने को समझना है कि क्या चीज है। तो मानव मानव संबंध को देखेंगे तो 3 जगह आएगा, परिवार, समाज और व्यवस्था। और मानव प्रकृति को देखेंगे तो पदार्थ, प्राण और जीव, 2 जगह संबंध। तो इसमें हार्मनी हो जाए और इसमें हार्मनी हो जाए। ये हार्मनी हमको बनाना है या है? अब केवल इतना ही मामला है, समझना है, अस्तित्व को समझना है। अस्तित्व को समझ लिया और इसमें हार्मनी आ गया, ये जो रेड खत्म होकर के इसमें मान लो हार्मनी हो गया, ग्रीन हो गया, राइट? अब हमको परिवार में जीना आ गया, समाज में जीना आ गया, व्यवस्था में जीना, मतलब मानव मानव के साथ जीना आ गया और मानव प्रकृति के साथ जीना आ गया। इसका नाम है मोक्ष। ये क्या हो गया? मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति मतलब अस्तित्व के अनुरूप जीना। अभी क्या हो रहा है? संसार से मुक्त होना मोक्ष है, और आगे जाएंगे तो अस्तित्व जैसा है वैसा संसार बना देना मोक्ष है। यस। अभी अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अस्तित्व में
एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अगर डिवाइड करेंगे, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। ओके, तो अस्तित्व में आप जब जी रहे हैं तो आप ये दोनों एनर्जी से अछूत नहीं रह सकते हैं। अभी आपने एजम्पशन किया है कि ये जो मानव ने जो किया है परिवार में जो है, अभी वो अस्तित्व के अंदर में जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उनका भी रोल है अस्तित्व में। उससे आप टोटली कट ऑफ नहीं हो सकते हैं। ये इसके बारे में आपका क्या? आएंगे आएंगे। अस्तित्व में एक और एनर्जी बता देता हूँ। वो 4 एनर्जी है, बट अभी अरे तो मैं बहुत सारे बता दूंगा, लेकिन Okay. पर मोटे मोटे आते हैं। ओके ओके, कोई भी प्रश्न ही नहीं है अस्तित्व में जिसका उत्तर नहीं है। हाँ हाँ बराबर। ठीक है, अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व है ना, तो अस्तित्व ही तो उत्तर है। हैं? अस्तित्व है वो तो पहले से ही है, वो तो अस्तित्व में उत्तर ही है ना। वो अस्तित्व जितना नहीं पता है वही तो प्रश्न है। तो प्रश्न है कि उत्तर है पहले, क्योंकि अस्तित्व है तो उत्तर तो है ही। अब जो जो भाग नहीं समझ में आया उसको समझेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई और है, उसको समझेंगे। कोई बहुत बड़ा रहस्य है ही नहीं, सारा अस्तित्व खुला ही हुआ है। हमारे समझने में क्या हो गया है कि हम संसार का स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं बौद्ध बच्चों के रूप में जब बनना चाहता था तो उनको ये समझ में आया कि भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा, जी अच्छा 1 मिनट भैया, हाँ थोड़ा सा आप अपनी बात कर लो, मैं आऊँगा तो सुनाऊँगा। हाँ आप अपना विश्लेषण दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप क्या क्या टटोल अरे नहीं, वो तो बढ़िया, वही प्रक्रिया है, ये सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हर चीज आप एक प्रश्न यहाँ पूछ ही नहीं पाएंगे जिसका उत्तर नहीं है, ये पहले से बता कर रहा हूँ। हर चीज का उत्तर है, अंत में समाधान होके ही जाएगा। यहाँ से, यहाँ समस्या रहनी ही नहीं है। यहाँ से 5 दिन बाद जाएंगे, ऐसा लगेगा हर चीज का समाधान है। कोई ऐसे अस्तित्व में चीज ही नहीं जिसका समाधान नहीं। तो एनीवे 1 मिनट बचा है तो उसमें बता देता हूँ, क्योंकि अपन लोग टाइम से शुरू और टाइम पे पूरा यही। तो भगवान बुद्ध की कहानी है। तो वो बहुत अच्छे एक राजा के घर में जन्म हुआ और उन्होंने पूरे लाइफ दुख देखा नहीं, क्योंकि जब वो जन्म हुआ था तो एक कहानी थी उसमें कि वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या भिक्षु बन जाएंगे, है ना, साधु बन जाएंगे। और फाइनली उनके जो पिताजी थे उन्होंने अरेंज किया कि भाई इनको कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, कहीं दुख के कारण ये महात्मा न बन जाए। उनको तो चक्रवर्ती सम्राट बनाना था। फिर एक समय आया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे टाउन को देखना है, सिटी को देखना है। तो सिटी को खूब सजाया गया कि उसमें कोई भी दुख ना हो, क्योंकि संसार में क्या है, दुख। कहीं दुखी हो गया तो उनको चाहिए नहीं। तो उन्होंने संसार का थोड़ा ठीक ठाक कर दिया भाई, कि चलो बाहर आओगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। गए तो एक बार देखा, हर 3 विजिट किया, 3 विजिट में 3 चीज़ें दिखी। एक क्या दिखा उनको, बीमार आदमी, रोगी। दूसरा देखा तो बुढ़ापा, और तीसरा देखा तो ये 3 चीज़ों को उन्होंने मान लिया कि दुख है। क्या किया, मान लिया। तो संसार क्या दिखा, दुख है। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया और उनको ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद लोगों को ज्ञान दिया। ज्ञान में क्या निकला कि जरा मरण ही दुख है, क्योंकि उसी से उनको दुख हुआ था। और जरा मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। तो यहाँ पे संसार को उन्होंने दुख के रूप में देखा। कब देखा, 2500 साल पहले, क्योंकि तभी भी मानव के बीच और मानव प्रकृति के बीच झंझट था, तभी तो दिखा। अभी एक और चीज आ रही है जो इससे भिन्न है। इसमें संसार का स्टडी ही नहीं है। अभी इस दर्शन में संसार का स्टडी नहीं है, इस दर्शन में अस्तित्व का स्टडी है। और अस्तित्व बहुत खूबसूरत है। अस्तित्व में एक व्यवस्था है, हर एक चीज के होने का प्रयोजन है, हर एक चीज पूरक है। और यहां क्या कह रहे हैं कि यदि हमारा अस्तित्व का अध्ययन हो गया तो इसका क्या प्रमाण है, संसार में व्यवस्था स्थापित हो सकती है। ये व्यवस्था को मैं देखूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा,
समाधानी। और मान लो अब व्यवस्था पूरी धरती पे आ गई और एक बच्चे का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ, उस व्यवस्था को देखेगा तो उसको क्या होगा, उसके अंदर फीलिंग सुख। तो प्रथम आर्य सत्य क्या है? सुख है। प्रथम आर्य सत्य सुख है। कहाँ? अस्तित्व में। यहाँ से कहानी की शुरुआत है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे तो हर जगह आपाधापी है। तो एक और संसार बनने वाला है जिसको आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग बैठ करके वो संसार को ही गढ़ने वाले हैं, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें समस्या नहीं है। उस संसार को गढ़ने का एक कार्यक्रम है, शिविर उसके लिए हो रहा है। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, लंच के बाद मिलते हैं फिर से।